recording. So this chapter is 9th chapter of Bhagavad Gita, and where Krishna is describing something about the Devi Devta का जो worship होता है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे. See what he is saying. Yeah. Kartikeya, can you read this? Translation. Those who study the Vedas and drink the Som juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. हाँ, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो लोग वेदास का स्टडी करते हैं, वेदास में बहुत सारे यज्ञास बता रखे हैं. अगर आपको हेवनली प्लैनेट्स पे भी जाना है, देवी देवताओं के पास जाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे यज्ञास बताए गए हैं. तो जो लोग भी हेवनली प्लेजर्स के लिए एस्पायर करते हैं, you know not in heavens people have long life and they have many wonderful enjoyments. So he's telling that how those who worship, those who study the Vedas, and they may be able to go to the heavenly planets. How do they go there? Purified of the sinful actions, they take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy the godly delights. So because of performance of the yagyas and Vedic yagyas, तो उन लोगों को मौका मिलता है हेवन में जन्म लेने का. ओके, जहाँ पे कि वो काफी सारे एंजॉयमेंट कर पाते हैं. वहाँ पे in the heavens they have a better body, they have better material body by which they're able to enjoy better. Okay, then it says, but there is a problem about that. What is that problem? So he's telling the next shloka. Tetam bhuktva swargalokam vishalam shine punye marte lokam vishanti evam trayi dharmam anuprapanna kata gatam kam kama labhante. Yes, Ayush, can you read this? When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasures and the result of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of three Vedas achieve only repeat and death. या तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, like you know by performance of yagya and all one can go to the heavens, and वहाँ पे जाके व्यक्ति बहुत सारा sense pleasures पा सकता है. You know, in the heavens you have a better body, there is no concept of diseases and old age, and one can enjoy, you know, one can enjoy intoxication, one can enjoy the company of the opposite sex, you know about Urvashi and other, you know, they are there, you know. So one can get lot of sense pleasure there because the body is very capable of enjoyment there. So indeed it is being told that devtas जो होते हैं वो सब कुछ घी में खाते हैं. वहाँ पे कुछ ऑयल का या डालडा का कोई चक्कर नहीं होता है, सब कुछ वहाँ पे प्योर घी में रहता है in the heavens में, and their body is capable of having vast enjoyments. तो बता रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे काफी एंजॉय कर पाते हैं. आप देवी देवता बन सकते हैं, वहाँ पे काफी एंजॉयमेंट भी कर पाएंगे, लेकिन कब तक कर पाएंगे? जब तक कि आपकी जो पायस एक्टिविटीज है, जब तक के पास आपके पुण्य का कोटा है. क्योंकि लाइक जैसे पुण्य का कोटा जब खत्म हो जाएगा तो आपको वापस क्या होना पड़ता है, देन दे रिटर्न टू दिस मॉर्टल प्लैनेट अगेन. तो जब तक आपके पास में पुण्य है तो तब तक आप वहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे, और जैसे आपके पुण्य खत्म होंगे तो क्या होगा, आपको वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, इसी अर्थ पे आना पड़ेगा. दस हो इसे बता रहे, कंक्लूजन क्या है? Thus those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only the repeated birth and death. तो बता रहे इसलिए जो लोग सिर्फ वेदास को फॉलो करते हैं एंजॉयमेंट पाने के लिए, और लाइक इवन दोज हु डिजायर टू गो टू द हेवंस एंड ऑल, उन लोगों को भी अल्टीमेटली क्या मिलता है? रिपीटेड बर्थ एंड डेथ ही मिलता है. मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में जब तक हम रहेंगे तो रिपीटेडली हमको बर्थ एंड डेथ ही लेना पड़ेगा. आपको बताने से अल्टीमेटली इट इज सफरिंग ओनली. एंड देन फर्दर कृष्णा सेज, but then Krishna is telling that what will happen to the people who will worship me. See, he says this beautiful shloka, ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshema bahamyaham. See what Krishna is telling, but those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. So what is the meaning? Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं मेरे फॉर्म को ध्यान रखते हुए. नो लाइक जो लोग भगवान पे ध्यान लगाते हैं, कृष्ण स्टेलिंग की जो लोग मुझ पे ध्यान लगाते, माम मींस मुझ पे, जो लोग मुझ पे ध्यान देते हैं, क्या होता है? तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्. एलआईसी है ना, एलआईसी का ये लोगो होता है, आपको पता होगा स्लोगन, राइट? योगक्षेम वहाम्यहम्. सो द एलआईसी पीपल दे क्लेम दैट हाउ, है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, राइट? दे क्लेम लाइक दैट. योगक्षेम वहाम्यहम्. योगक्षेम वहाम्यहम् मतलब कि आई एम द मेंटेनर. तो भगवान बता रहे कि कैसे जो लोग मुझे डिवोटेड होते हैं, दोज हु आर माय डिवोटीज, आई बिकम देयर मेंटेनर, आई पर्सनली मेंटेन देम, व्हिच मींस व्हाट?
like whatever my devotees they lack, I provide them personally, and whatever they have, I preserve it. तो एक्चुअली लॉर्ड असली में भगवान ही हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, असली में भगवान ही हमको मेंटेन कर सकते हैं। बाकी इस मटेरियल वर्ल्ड में आप देखो LIC में आपने पॉलिसी किया तो आप देखोगे कई बार इस लाइफ में भी हमको इतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है LIC के द्वारा। और व्हाट टू स्पीक ऑफ लाइफ के बाद में क्या होने वाला है, nobody knows only, isn't it? Like now corona was there, now so many people have died, many of them had LIC policy, right? So how were they able to save them? Where is the concept of Yogeshay Mahamyam? So Yogeshay Mahamyam, Krishna has promised that I will be able to maintain and give protection to everyone who will come to me. But the people of this world, they think that okay, we will become Yogeshay Mahamyam, that we will try to become the maintainer and the protector. So nobody is the maintainer and the protector, only Krishna is the maintainer protector. So Krishna is telling here, कि जो लोग मुझे वर्शिप करते हैं एक्सक्लूसिव डिवोशन के साथ, एक्सक्लूसिव डिवोशन मतलब कि क्या है, वो गणपति जी के पास में, शिव जी के पास में, और काली मैया के पास में, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे गणेश चतुर्थी आया तो गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया, या फिर दुर्गा माता का टाइम है तो आज तेरा जगराता माता माता माता, not like that. Exclusive devotion means they always will chant what they will chant always, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So for all the purposes they will only worship Krishna only. That is the meaning of exclusive devotion. So जो लोग इस तरीके से exclusively भगवान को करते हैं worship, तो वो लॉर्ड बोले कि I carry what they lack. तो जो भी हमारे में कमी होगी ना, like all of us are also trying to become devotees ना, actually we should have faith that whatever I lack, Krishna will provide to me, provided if I will follow Krishna's instructions in my life. So the Pandavas were only 5, and they were not having military strength equivalent to the Kauravas. They were not having such stalwarts like Bhishma Pitama and Dronacharya and Ashwathama and the Karna in their party. But because Krishna was there in their party, so whatever they lacked, Krishna fulfilled that. That is what Krishna is promising, that if somebody will worship me with his heart, like all of you also know chanting Hare Krishna, and you're trying to sincerely take these teachings of Krishna. So Krishna is promising that, see, you will find that you will not have to be sorry in any field. In any field you will go, Krishna will give you whatever you deserve, and Krishna will give you even more than what you deserve. That is what Krishna is promising. Okay, and then further he says, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अभिविधि पूर्वकम. So Krishna is telling कि जो लोग बाकी देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो लोग भी अल्टीमेटली मुझे वर्शिप करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से वर्शिप नहीं करते हैं. See what is telling, those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do it in a wrong way. Which means what, कि देवी देवताओं को भी कोई वर्शिप कर रहा है तो वो भी अल्टीमेटली उनको जो वर्शिप करेंगे वो भी अल्टीमेटली भगवान के पास में जाएंगे, बिकॉज भगवान ही अल्टीमेटली उनके भी सोर्स है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है. सही तरीका नहीं इसका मतलब कि क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे एग्जांपल आता है like suppose if you have to put your food in your body, so what is the right way? The right way is you have to put the food through the mouth. So actually there are 9 holes in the body. You have 2 eyes, 2 ears and 2 nostrils and the mouth and the genitals and the anus. Like that there are some 9 gates. ये जो हमारा बॉडी है ये 9 दरवाजों का बना हुआ है. अब इन 9 दरवाजों में से क्या है, खाना जब डालना होता है तो कहाँ से डालना होता है, मुंह से डाला जाता है, राइट. लेकिन कई बार सपोज कोई बहुत डिजीज्ड हो, किसी का अगर बहुत कोई डिजीज कंडीशन में क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग दूसरे जो आपके होल्स होते हैं वहां से भी खाना डालते हैं बॉडी के अंदर में कई बार, बट वो क्या डिजीज कंडीशन में डाला जाता है. तो वैसे बता रहे हैं कि राइट वे ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा इज व्हाट, दैट वी डायरेक्टली वर्शिप कृष्णा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द देवी देवता. सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग, दैट इज अविधि पूर्वकम. ये अविधि है, ये सही विधि नहीं है. कृष्णा इज टेलिंग दैट वर्शिपिंग द देवी देवतास इज नॉट द राइट वे. And then see further this, and further he says that how Krishna is the enjoyer of everything. And then Krishna is telling कि like many people they think कि अच्छा देवी देवताओं का भी पूजा करेंगे तो फिर शायद है ना अल्टीमेटली भगवान के पास ही जाएंगे, बट ऐसा नहीं है. श्री कृष्णा इज टेलिंग यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि कैसे as per whom we will be worshipping we will be getting the different destinations. So like Krishna is telling here, Yanti, I think one of you can recite also after me, who would like to do, any of you? Sahil, आप रिसाइट करना चाहोगे मेरे पीछे श्लोका? Yes, sir. Okay. So he's telling Yanti Devavrita Devan. Yanti Devrita Deva. Pitran Yanti Pitravita. Pitriyanti Pitravita. Bhutani Yanti Bhuteja. Bhutani Yanti Bhutejaya. Yanti Madhyajinopimam.
Yanti madhya jinofamam. So Krishna is telling here that how the worshippers of different people will be going to the different destinations. They're not going to have the same destination. Like we discussed last time also कि कैसे अगर आपने ट्रेन का टिकट लिया है, अगर आपने टिकट लिया है कलकत्ता का तो आप ट्रेन में बैठ के कलकत्ता पहुंचोगे, अगर आपने टिकट लिया है बॉम्बे का तो आप बॉम्बे पहुंचोगे, राइट? तो जहाँ जिस जिस ट्रेन में आपने बोर्ड किया है आप वहां पे जाओगे। वैसे ही हम जिसको वर्शिप करेंगे वी विल गो टू देम ओनली। सो कृष्णा इज टेलिंग यान्ति देव वृता देवान, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास में जाएंगे, दे विल गो टू द स्वर्गलोका। पितरन यान्ति पितृविता, जो लोग पितृ पितृ होते हैं ना, जो फॉर फादर्स, जो हमारे पुराने जो पूर्वज होते हैं ना उनको पितृ बोलते हैं। घर पे आपने देखो ना शाद सेरेमनी भी रखते हैं, है ना, पितरों की पूजा की जाती है पुराने, है ना, दादाओं की। तो बता रहे हैं कि जो लोग उनकी वर्शिप करेंगे तो वो लोग उनके पास में जाएंगे। तो जो पितृ लोग होते हैं उनका भी प्लेनेट होता है पितृ, उसे बोलते हैं पितृ प्लेनेट, तो वहां पे जाएंगे ऐसा बता रहे हैं। भूतानी यान्ति भूतेज, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करेंगे वो लोग भूत प्रेतों के पास में आएंगे। एंड यान्ति मद याजिनोपि माम, और जो लोग मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास में आएंगे। ऐसे कृष्ण इज टेलिंग वेरी क्लियरली। Those who will worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors will go to the ancestors. And those who worship the ghost and the spirits will take birth among such beings. And those who will worship me will live with me. So that is what Krishna is explaining here, that how that those who will worship me, they will come back to me only. Okay. So essentially what we are seeing here in this particular section of Bhagavad Gita, that how the Devi Devta worship is also is a avidhi purvakam. It's an indirect way of worshiping Krishna. And how if somebody worships the Devi Devtas, then he goes to their planets. But the problem is that as soon as the quota of the pious credits is exhausted, one has to again come back. Just like, it is just like, suppose you have a lot of money, then you can go to the 5-star hotel. Even in India, there are some hotels, there where for one night stay, there is something like in Rajasthan, I think in Jaipur or Udaipur, I'm not so sure. But there's one hotel there, एक रात का वहाँ का फीस है something like 40-45 lakhs. वहाँ पे बहुत आलीशान उन्होंने बंगलो बना रखा है उस होटल में, लाइक सो उसमें आपका एक रात का स्टे का कितना पैसा है? 40-45 lakhs, तो now how long a person can stay in that room? Only that much money which he has, isn't it? तो same way जो हमारे पास पुण्य कर्म होते हैं उसके हिसाब से हम देवी देवताओं के पास जा सकते हैं, देवलोक में जा सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा वहां पे जाके हम एंजॉयमेंट करेंगे तो हमारा पुण्य का जो कोटा है वो खत्म होता जाता है। जैसे खत्म हुआ वैसे आपको वापस इस अर्थ पे आना पड़ता है, एंड फर्दर अगेन यू हैव टू रोटेट इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसलिए दैट इज नॉट द हाईएस्ट थिंग व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम द देवी देवतास। ओके, एंड लास्ट थिंग वी डिस्कस्ड दैट हाउ जो देवी देवता वर्शिप करते हैं उन लोग देवी देवताओं के पास में जाते हैं, बाकी लोगों की जगह पे बाकी लोग जो अलग अलग लोगों की वर्शिप करते हैं वो अलग लोगों के पास में जाते हैं। ओके, तो एक ये पर्टिकुलर सेक्शन है भगवद गीता का। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द डॉक्यूमेंट। सो हियर इज अ डॉक्यूमेंट। सो last time हमने देखा था ये about relationship of Krishna and the demigods. We discussed that how Krishna is telling that aham adirhi devanam, that how I am the source of all the demigods. So सारे जो देवी देवताज हैं वो भगवान कृष्णा से ही आए हैं ultimately. That is very clearly spoken many places in the Shastras. So this is one thing we discussed. And also we discussed that how we can very clearly see that how जब भी कुछ विपत्ति आती है तो सारे देवी देवताज जो होते हैं they go to meet Lord Vishnu, which shows that Lord Vishnu is supreme than them. Otherwise, if everyone would have been the same power, then they would have never gone to Lord Vishnu. So we always know that whenever there is some crisis in the universe, and Devi Devtas, they go to Lord Vishnu. That shows that how Lord Vishnu is supreme. And of course, Krishna is the source of Lord Vishnu also. We have discussed it earlier. And then this was the third thing we were discussing last time. Difference between the Krishna worship and the demigod worship. जिसमें हमने पहला point last time देखा था. How demigods, they give what we want, whereas Krishna gives what we need. ओके, तो देवी देवता हमको क्या देते हैं? जो भी हम मांगते हैं उनसे, लेकिन जो कृष्ण है he will give whatever is favorable for us, whatever is our real need, है ना? So I have given some example also. Any of you would like to elaborate this point? Last time हमने इसको डिस्कस किया था. Any example you remember? I have given an example. Divyanshu is raising hand. Okay, good. Yes, Divyanshu, you can explain. You can explain this concept with some example. I have given one last time. Something related to sweets. Yes, sir. You gave an example कि मान लीजिए एक स्वीट शॉप है, तो वहाँ पे मान लीजिए हम अपने फादर के संग एक छोटा बच्चा गया, तो छोटा बच्चा जिद करेगा स्वीट्स लेने के लिए, लेकिन फादर को पता है कि ये स्वीट्स वगैरह खुले में रखे हुए हैं तो ये अनहाइजीनिक है और ये खाने से
चाइल्ड का जो हेल्थ है वो खराब हो सकता है। लेकिन वहीं पे दूसरे हैंड पे वो शॉपकीपर है, वो ट्राई करेगा कि नहीं, मतलब वो बेचना चाहेगा अपनी स्वीट्स, चाहे मतलब उसे भी पता है अनहाइजीनिक है, लेकिन वो देना चाहेगा। तो करेक्ट। इसी तरीके से डेमीगॉड्स हैं कि वो जो अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो डेमीगॉड्स जरूर देना चाहेंगे, लेकिन कृष्णा जो है वो आपके बेनिफिट के लिए सोचते हैं और वो वही चीज देंगे जो आपके लिए सही होगी। Very good, very nice. Thank you so much for this, remembering this good example. Okay, so basically, Krishna thinks about our ultimate welfare, whereas Devi Devta, they don't bother about our welfare, whether it is going to be helpful for us or destructive for us. They don't bother about it, right? And there are many examples we have seen already, like like Ravana. Ravana was being given power by Lord Shiva. He was a devotee of Lord Shiva, so he was given power by Lord Shiva. And you see, finally, what happened? Because of that power, Ravana became very proud, and ultimately, we find that he was doomed. He was being killed by Lord Ram ultimately. So we find about Hiranyakashipu. He was being given power by Brahmaji. And then finally what happened because of that, because of getting that power, finally what happened is he became doomed. Whereas you will never find any devotee of Krishna, Vishnu or Lord Ram. Somebody who has worshipped Lord Ram or Vishnu and Krishna and they got some, and they became a very big demon. ऐसा कोई आपको example नहीं मिलेगा history में. Why? Because those who come to Krishna, they get fully purified actually. उनका heart पूरा purified हो जाता है and they just want to love God, they just want to serve God. They desire for ultimate benefit, real benefit of life. They don't desire for the temporary things of this world. That is the beauty of Krishna's worship. That was one thing we discussed last time, that how Krishna will give us what we need actually. And then we have also discussed about कि अगर if the demigod worship is ultimately futile, then why do most people worship the demigods? अगर डेमीगॉड का वर्शिप करने से फाइनली हमको कुछ मिलता नहीं है, टेम्पररी चीजें मिलती है, फिर भी लोग क्यों वर्शिप करते हैं? Why? Because people want to have, in this world also you will find most of the people, they, even those who practice spirituality, they are desiring what? Some material benefits, na? Like here it is being told. Greedy people worship demigods to get quick material benefits like bungalow, car, material fame, positions, etc. So they get the desired results, but they do not know what the results. They do not know that the results obtained are temporary and are meant for the less intelligent persons. The intelligent person is in Krishna consciousness, and he has no need to worship the demigods for some immediate temporary benefit. The demigods of this material world as well as their worshippers will vanish with the annihilation of this material world. So, anyways, this is a point that why people go to the Devi Devtas, because they are too much desiring some material benefits in this world, some short-term temporary benefits. Just like, sometimes a small boy is also there. जब छोटे थे आपने देखा होगा ना, like suppose a small boy is there. Now a small boy may be offered that, बेटा चलो ये 100 rupees का नोट है, या तो ये ले लो या फिर ये चॉकलेट ले लो. Take some, that thing. So sometimes a lollipop, lollipop is one of the famous things in childhood. So now the small child will, because he is not so sufficient intelligence, he will go for the lollipop only. But he will be, if he is little intelligent, then he will take 100 rupee note, understanding that if I will have a 100 rupee note, then I will be able to buy lot of candies, isn't it? Same way, taking to Krishna's worship is like taking to the 100 rupee note. So when we start worshipping Krishna, then we get a chance to go to the spiritual world, and there we can enjoy completely. Even in this world also, if we become devotee, if we start following the principles of Bhagavad Gita in our life, then we'll find that even in this world, a devotee becomes very happy, joyful, fearless, and is able to distribute happiness to others also. And also after going back, after leaving this body, also after leaving this world, a devotee is having wonderful opportunity to be with Krishna in the spiritual world. Whereas on the contrary, if we desire to have only some temporary things in this world, that is not very great intelligence. So this was another thing we discussed, and these are some of the examples. And also this was one more thing we discussed last time. Does Krishna also award material benefit to his devotees? So yes, the answer is yes. Krishna also gives, like if you have some desires, even if you want to do some big ambition in this material world, so if you will worship Krishna, then Krishna will provide that. There's no problem. Just like the example is given of Dhruv Maharaj. जो ध्रुव थे वो भी गए थे भगवान के पास में, किस पर्पस के लिए? बड़ा किंगडम पाने के लिए. उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उन्होंने क्या किया था कि उनको गोद से हटा दिया था, उनके फादर उतानपाद के गोद से. So then he became very angry because he was Kshatriya, even though he was a small boy, and he thought that I will try to have a bigger kingdom than my father also. And then, of course, the Narad Muni came in his life, and Narad Muni told him that how he should worship Krishna with the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And then he worshipped Krishna, and what happened is his heart became purified. He understood about the temporary and the futility of the material life.
And that's why he didn't, when Lord came in front of him and asked it, what do you want? Then he told that, Lord, I began my tapasya for the purpose of getting some, temporary thing of this world. But now my heart is purified and I simply desire to serve you, to love you. And the Lord told, okay, no problem. You can continue doing that and I will give you a big kingdom also because that was your desire. And then of course, he's being given the Dhruva Loka, which we have, Dhruv Tara, jisko hum bolte hain. So the point is that at same way we know about Sudama also. Sudama was also given a great riches by Krishna, but we don't find that Sudama became, relaxed and Sudama left bhakti of Krishna. It's not like that. So Krishna will purify our hearts, so that even some material things, big things coming in our life, they don't become an impediment in our life for our ultimate goal of our life. Because then, suppose if you get lot of things, lot of big thing in your life, let us say, for example, like all of you also now, tomorrow, suppose you get into a very big job, big paying job, okay, good. Many of you may have inspiration. There's nothing wrong. You can earn a lot of money, and then you can try to serve the humanity by giving them Krishna consciousness by using the money. There's no problem, right? But suppose if that money is going to become an obstruction in your path of spirituality, then Krishna will first help you to become more stronger, and then Krishna will provide you everything if you continue to be a devotee. That is the beauty of Krishna. Krishna being the good father, he always sees the ultimate benefit for all of us. So this was another thing which we discussed last time. Okay. Now let us go to the next part, and first let us finish this part, and फिर अगर आपका कुछ question होगा तो हम उसको लेंगे. Okay. So this is the fourth part. Demigod worship is ultimately futile. Krishna worship is the ultimate successful. Okay. So one of you can read. I think that will be better. So who would like to read? Any of you? Yes, sir. Ayush, Divyanshu, and Karthikeya, 3 are there. Okay, so let us begin with Karthikeya. Karthikeya, you can read first. And we will give opportunity to those who have not spoken. Huh? Yes, Karthikeya, you can first speak. Then maybe our Utkarsh can also speak. Utkarsh can read. And then Amit. The boots of the demigods are material and temporary. Both the material worlds and their inhabitants, including the demigods and the worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. They will vanish in no time. The futility of demigod worship can be understood from the following examples. A demigod worshipper may hanker for wealth. I want wealth. I want wealth. Although he may get it if he does not. Although he may get it if he does not act piously, he will be forced to take birth as a dog in the next life. Another demigod worshipper may hanker for education and may even become a reputed scholar. But in the next life, he will have to begin from learning ABC all over again. Even if a demigod worshipper achieves even if a demigod worshipper achieves a higher planet, the abode of a demigod, he still has to return to this mortal planet again when the results of his pious activities are exhausted. As confirmed in the Bhagavad Gita 9.21, Kishayan Punya Marthya Lokam Vishanti. We just saw that. Right? Shine Punye Martya Lokam Vishanti. Like one again has to come back to the material world. Right? आप examples दे रखे कि कैसे जो भी benefits हमको मिलेंगे देवी देवताओं से वो सब temporary रहने वाले हैं. Okay, go ahead. Good. On the other hand, if one achieves the highest planet, the abode of Lord Krishna, then one will live an eternal life full of bliss and knowledge there. Such a devotee never has to return to this miserable material world. Since we have to anyway work hard in the material world, then why not work for the best? Why not fully utilize this human body, make the best out of bad bargain to attain ultimate relief from suffering? Yeah. So here it says that how the ultimate aspiration should be to go back to the Krishna's abode, where we will no more have to suffer with all this business, right? So why not utilize our body for the highest benefit, right? That is what is being spoken. Okay. Next, Amit, you can read next part. Yes, sir. Demigod worship is for read it. Yeah, read it. demigod worship is for the less intelligent. Krishna worship is for truly intelligent. If demigod worship is ultimate futile, why do most people still worship the demigods? Because demigods give quick material benefits, and that is what most people want. The nature of the promise is given to the demigods worshipper is you do this puja for ease,
you will get a good wife. You do this puja for 14 minutes and you will be successful in your court case. For example, Ganesh Stotra case. Jape Ganpati Stotrama Shadvir Mase Palam Lavit. By chanting this Ganpati Stotra, one can achieve result within 6 months. The Stotra continues. Vidrati. विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रम मोक्षार्थी लभते गतिम. Right? A student will get good education. A man desirous of wealth will acquire wealth. A man aspiring for a son will get a son. And a man after liberation will achieve a destination. In this way, many material benefits are dangled in front of people. Those who want results are attracted by such elements and thus they worship demigods. Demigod worship is impelled by material desires. Thus, the desire for material sense gratification is like itching sensation. The more you scratch the itch, the more you will want to scratch. And the ultimate Okay, just a screen. minute. एक मिनट, just give me a second. Topple हो गया. Just a second. ये कुछ sheet में कुछ mistake हो गया. I will again open it, है ना? So what it is telling, the same thing, है ना? That how the demigods are capable of giving us quick benefits, and that's why most of the people, they are desiring that only. And that's why they worship the Devi Devtas. Okay. Yeah, I have opened it again. I have to share again, right? Yeah. So here we are. Yeah, you can begin again. Demigod worship is impelled by the material desires. यहाँ से पढ़ना है आपको, ना? यहाँ से. Yes, Amit, you can continue. Sir, yes, sir. Demigod worship is impelled by the material desire, but the desire for material sense gratification is like an itching sensation. The more you scratch the itch, the more you will want to scratch. And the ultimate result of this itching is bleeding and suffering. Similarly, the more we satisfy our material desires, the more we keep increasing. And such sense gratification ultimately leads only to misery. Therefore, going to the demigod for relief is like going to a friend when you're having an itch on your back and requesting him, please scratch my back. Sir, please scroll down. The relief that it will provide is temporary. It will not actually solve the problem, but worshipping Krishna is like going to a doctor who will cure the itching sensation by proper medicine. It is the only solution. Krishna says in Bhagavad Gita, Antavatatu palam tesham tad bhavati madesham. Devan deva yajo yanti mad bhakta yanti mam api. Men of a small intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigod, but my devotee ultimately reach my supreme planet. Yeah, so here is the point, right? So Amit, can you explain what is being spoken here in this particular paragraph? You understood the example of itching? Can you explain this? Yes, sir. Yes, sir. Basically, it is described that the people in this material world are such tempted to fill his or her desires, materialistic desires. So they want to fulfill their desire too quickly. Correct. So they like examples are given that if you do this for 6 weeks or for some time you will get this, and people are like get involved so much in this practicing this types of
मतलब ये सब काम करने में कि उनको जल्दी से जल्दी एक के बाद एक उनको जो चाहते हैं मिलता जाता है, तो वो अल्टीमेट नहीं जा पाते कि हमें अल्टीमेट हमें क्या करना है, लाइक वर्शिपिंग लॉर्ड के अडोबे में जाके ये सब भी चीजें वहां मिल सकती हैं, और टेम्पररी जो चीज हो सकता है वो करते हैं। लाइक हमें इचिंग की प्रॉब्लम है बैक में, तो हम अपने फ्रेंड के पास जाके उसको बोलना कि यार कुछ उससे बेटर होता है क्योर कि अगर हम डॉक्टर के पास जाके वो पूरे मतलब जो भी अपना डिजीज है उसको क्योर करने के बजाय हम टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते हैं बाय वर्शिपिंग डेमिगॉड। गुड 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 गुड, राइट। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ये जो इचिंग के बारे में यहाँ पे कुछ बताया है ना? एनी ऑफ यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट इचिंग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ उत्कर्ष, प्लीज टेल। हाँ यस Yes, sir. उत्कर्ष, I am audible. हाँ यू आर ऑडिबल। Yes, sir. इसमें सर सर इसमें जनरल एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि लेट्स से एग्जांपल सर ये है कि जैसे किसी के अगर इचिंग, लेट्स से किसी के बैक पेन हो रहा है, तो जनरली गांव में ऐसा होता है कि हकीम टाइप के लोग होते हैं, हकीम टाइप के, यदि उनके पास चले जाओ तो कुछ सम टाइम के लिए आपको अगर वो कुछ करते हैं अपना ऐसे हाथ पाथ झटका मारते हैं कि आपका वो पेन जो होता है वो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, या ज्यादा टाइम के लिए बंद हो सकता है, लेकिन वो आपका परमानेंट के लिए नहीं जाता है। उसके लिए आपको एग्जैक्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो इसमें स्पेशलिस्ट है, वरना आपको यही करना पड़ेगा। आप हकीम के पास जाते रहेंगे, फिर आपको फिर वो थोड़े टाइम के लिए ठीक कर देगा, वो कुछ टाइम तक वर्क करेगा, आफ्टर सम टाइम फिर वही हाल हो जाएगा। जी सर। ओके गुड गुड एग्जांपल। एनीवेज गुड। यहाँ पे बता रहे हैं इचिंग जैसे होता है ना, जैसे आप लोगों को हुआ होगा ना, कितने लोगों को इचिंग का एक्सपीरियंस है, खुजली का एक्सपीरियंस, खासकर अभी जब गर्मी का टाइम होता है तो काफी इचिंग होती है। कितने लोगों को इचिंग का एक्सपीरियंस है? जी सर, मुझे ऑलमोस्ट सबको, राइट ना? तो इचिंग में क्या होता है, मान लो आपको कहीं पे खुजली है ना, तो खुजलाने का बहुत मन करता है, राइट? आप खुजलाते हो, लेकिन खुजलाने पे होता क्या, थोड़े समय के लिए रिलीफ दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। आप देखोगे खुजते खुजते ही ना पूरा वो ना छिल जाता है, खून आने लग जाता है, राइट? तो इचिंग को अगर हमको क्योर करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? वी हैव टू अप्लाई प्रॉपर मेडिसिन एंड वी आल्सो हैव टू टॉलरेट दैट इचिंग, राइट? वी हैव टू टॉलरेट दैट। तो दो चीजें करनी होती है, राइट? तो यहाँ पे बता रखे कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो लोगों का जो मटेरियल डिजायर्स होता है, लोग मटेरियल डिजायर्स के लिए देवी देवताओं के पास में जाते हैं। और होता क्या है कि जैसे जैसे खुजली करने पे क्या होता है, जितना खुजली करोगे उतना इचिंग आपको बढ़ जाएगा। वैसे ही आप देवी देवताओं के पास में जाते हैं कुछ मटेरियल डिजायर के फुलफिलमेंट के लिए, आपको मटेरियल डिजायर्स मिल भी जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपकी ग्रीड और बढ़ती रहती है, आपकी वो जो मटेरियल डिजायर्स खत्म नहीं होती है, राइट? लाइक आप इस वर्ल्ड में देखोगे, द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज, if somebody is not Krishna conscious, if somebody is not practicing spiritual life, then what will happen is he will never feel satisfied. More he will try to possess the things, more he'll become all the more dissatisfied, you know. तो लोगों के पास में मतलब ग्रीड का कोई एंड नहीं होता है, आप देखोगे इस मेटल वर्ल्ड में, राइट? ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ मिल गया तो आपका डिजायर, राइट? लाइक somebody is a lakpati, he wants to become a crorepati. Somebody becomes a crorepati, he wants to become arabapati. Somebody wants a arabapati, he wants to become a kharabpati. लाइक डेट आप देखोगे कि जो ग्रिड होती है उसका कोई फुलफिलमेंट नहीं होता इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो वैसे देवी देवताओं के पास में कोई व्यक्ति जाता है और वो चाहेगा कि अच्छा कुछ मटेरियल बेनिफिट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि वो संतुष्ट रहता है, वो और ज्यादा पाना चाहता है, राइट? यू फाइंड अबाउट रावण एंड हिरण्यकशिपु आल्सो ना, उन्होंने क्या किया, उनको जब पावर मिला तो उन्होंने क्या किया, पहले अर्थ को कन्क्वेयर किया, उसके बाद में देवी देवताओं के प्लेनेट को भी कन्क्वेयर करने का कोशिश किया, लाइक दैट। So that is the nature of the greed. Greed means something which cannot be satisfied. So it is just like itching. जैसे itching को खुजलाने से वो satisfied नहीं होती है, वैसे ही जो material greed है वो कभी satisfied नहीं होती है। तो आप बता रहे हैं कि कैसे जो देवी देवता के पास में जाते हैं वो लोग क्या है, out of greed जाते हैं, और सिर्फ material desires मिलने से हमको satisfaction नहीं मिलने वाली है, ओके? और यहाँ पे देखो बताइए, जो गीता का श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, अंतवंतु फलम तेषाम, जो भी फलम मिलने वाला है हमको देवी देवताओं से, वो सब क्या होने वाला है, अंतवंत है, वो सब टेम्पररी होने वाला है। तद भवती, और उसको कौन पाने की इच्छा रखते हैं, अल्प मेधसाम, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो लोग देवी देवता के पास में जाते हैं और वो लोग टेम्पररी चीजों के लिए डिजायर रखते हैं। देवान देव यजो यान्ति, जो लोग देवी देवताओं देवान देव यजो यान्ति, सी व्हाट इट सेज, those who worship the demigods go to the planets of demigods। अगेन वो बता रहे हैं, देवान देवजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, लेकिन जो मेरे डिवोटीज है वो अल्टीमेटली मेरे पास में आते हैं, ओके? तो एनीवेज पॉइंट यहाँ पे एसेंस ये था दैट कैसे जो डेमिगॉड की वर्शिप है वो लोग कौन करते हैं, लेस इंटेलिजेंट लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डिजायरिंग ओनली टेम्पररी बेनिफिट, whereas those who are really intelligent, those who know their true benefit, they worship Krishna, okay? That is what is being spoken, okay? Now let us go to the next part. So next we would like to give opportunity to Amit ने already बोल दिया है,
and Utkarsh has already contributed it. Anyone else who has not contributed? Yes, Ritik is raising hand. Yes, Ritik, you can read, and then Ashish can also read. Okay. Do all paths lead to the same goal? Do all 9 holes of body serve the same purpose? Facilities are given for less intelligent people who are motivated by material desires. An intelligent person surrenders to Krishna in order to achieve ultimate liberation. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita that although those worshipping the demigods are actually worshipping him. So scroll down, sir. Hmm. Yeah. Such indirect worship is for the less intelligent people and is worship done in a wrong way. Why such worship is considered wrong is explained in the Srimad Bhagavatam. Yatha taro mulam nisechanam terpyanti tat skanda bhujo pasakak tano parak ka yahirandiram tatheva sarvar bhanam ashishvate. As pouring water on the root of a tree, Achyutetya. Pashtuchetia. As pouring water on the root of a tree energizes the trunk, branches, twigs, and everything else, and as supplying food to the stomach enlivens the senses and the limbs of the body, simply worshipping the Supreme Personality of Godhead through devotional service automatically satisfy the demigods, who are the parts of that Supreme Personality. When a man pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing regulative principles. Similarly, the process of providing nourishment to the different parts of the body is to supply food to the stomach. Yes. So here are two examples to explain that how if we will directly worship Krishna, then automatically we are worshipping the Devi Devtas. Everyone becomes satisfied. Okay. So Ritu, can you explain these two examples? यस सर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि हम लोग जब पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कभी कभी पत्तों पर और इधर उधर डाल देते हैं और रूट पे नहीं डालते हैं तो पत्तों पे डालने से अच्छा तो लगता है कि हम लोग मतलब भींगा भींगा बाहर से लगता है कि हम लोग ने पानी पटा दिया लेकिन असली जो रूट कॉज है वहां पे नहीं जाता तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता उसी तरह क्या बोलते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं तो मेन चीज हमारे जो जरूरत होता है हमारे स्टमक को वो हम लोग को लेना चाहिए ना कि जो कि न्यूट्रिशंस जो हमारे को जरूरत है वो लेना चाहिए नहीं कि दूसरा चीज जैसे जंक फूड ये सब खा के पेट भर लेना चाहिए बस हमें थोड़ा दूसरा वाला जो आपका था पहला वाला आपने सही पकड़ा पॉइंट दूसरा वाला थोड़ा सा इसमें थोड़ा और ऐड करने की जरूरत है तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स बता रखी है कैसे अगर हम लोग कृष्णा को वर्शिप करेंगे डायरेक्टली तो हमको फिर बाकी देवी देवता का भी ऑटोमेटिकली वर्शिप हो जाएगा राइट तो इसमें एग्जांपल दिया है ट्री का जैसे अगर ट्री में पानी देना होता है तो हम लोग रूट में पानी डालते हैं जब रूट पे पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे ब्रांचेस में लीव्स में फ्लावर्स में सब में अपना पानी अपने आप पहुंच जाता है राइट एंड सेम वे दूसरा है कि अगर हमको अपने बॉडी को नरिश रखना है सारे पार्ट्स को नरिश रखना है तो उसके लिए तरीका क्या है हम लोग स्टमक को फूड देते हैं और इससे क्या ऑटोमेटिकली हमारे सारे पार्ट्स को नरिशमेंट मिल जाता है वैसे अगर हम लोग कृष्णा को वर्शिप करेंगे डायरेक्टली तो देन ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता हम लोग प्लीज हो जाएंगे ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है ओके इज इट ओके ऋतिक यस यस ओके तो आई थिंक जंक फूड वाला यहाँ पे नहीं था मेंशन कुछ बट ठीक है कोई नहीं चलो सो नेक्स्ट आशीष यू वुड लाइक टू रीड फर्दर Yes, sir. Demigod can't avoid liberation. आई थिंक ये वाला पार्ट बच गया है इसको भी आप पढ़ लो आशीष आप भी पढ़ लो Foolish people Foolish people. confidently propound a sweet sounding yet but absurd philosophy. All paths lead to the same goal. Worship of all God is the same. This is like saying all the 9 holes in the body serve the same purposes. You can't put food in any of them and it will automatically reach the stomach. Does it make any sense? If our goal is to supply food to the stomach, in how many ways can we do so? The only way is through the mouth and not through the ear, nose, anus, etc. Similarly, there is only one way to conquer death and enter into the kingdom of God, as stated in the Shruti mantras. Tam ive vidvam ati mrityum ati nanya pantha vidyate ananya. Only by knowing the Supreme Lord only by knowing the Supreme Lord can one conquer death.
it is clearly stated here in Nanya Pantha, meaning that there is no other way. Yeah, so here is an example again, है ना, कि देखो अगर हमको फूड प्रोवाइड करना है हमारे बॉडी में, तो द राइट वेज हम लोग, हमारे पास ऑल द 9 होल्स होते हैं ना, 9 दरवाजे हैं हमारे बॉडी में. Our body is compared to like a house and it is having 9 gates. What are the 9 gates? 2 eyes होती हैं, 2 nostrils होती हैं, एक माउथ हो गया, कितना हो गया 5, प्लस 2 हमारे ईयर्स हो गए, दे आर 7, एंड एक हमारा हो गया रेक्टम, एंड एक हो गया हमारा एनस. तो टोटल मिला के 9 गेट्स होते हैं, राइट. तो बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको फूड प्रोवाइड करना है बॉडी को, तो व्हाट इज द राइट वे? यू हैव टू प्रोवाइड थ्रू द फूड, थ्रू द माउथ ओनली. इट्स नॉट दैट यू कैन प्रोवाइड थ्रू एनी अदर होल्स. तो सेम वे, so that is what being spoken here, that only ways to the mouth and not to the other owners. So similarly, if one wants to enter into the spiritual world, one wants to conquer the death, then the only thing is one has to worship the supreme lord. That is, there's no other pantha, na anya pantha. पंथ होता है कि रास्ता, और कोई रास्ता नहीं, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे. Okay, so anyways, the point was that how to worship the supreme god is the only way. There's no other way. All the paths are not going to lead to the same thing. Okay, because if you will worship the Devi Devtas, then you will have a different result. If you worship Krishna, then you will have a different result. That is what is being spoken. Okay. So now we are moving to the next part. Okay. Yes, Ashish, you can only read this, you know. Yes, sir. Demigods cannot avoid liberation. Only Krishna can. Yeah, read. Demigod can't avoid liberation. Only Krishna can. The demigod can offer only material benefit. They can't avoid liberation. Their position in the universal administration is similar to that of the various managers in the company. These managers have only a limited range of authority. For subjects outside their power of jurisdiction, they have to approach a higher authority. Similarly, demigod can give some benediction in the material realm, but they can give liberation. That can be given only by the Supreme Lord Krishna. Example, Yamraj and Yamdutaj have power only over sinful living beings and not Vishnu devotees. Another example, Brahma could give material boons to Hiranyakashipu, but not liberate from the cycle of birth and death. If Brahma himself is not immortal, how can he have given immortality to the Hiranyakashipu? Therefore, the revealed scripture direct to the truth seeker, the aspirant for liberation, to worship only Lord Vishnu and no one else, and is stated in the Shruti mantra. Tam eva vidyata anti mrityum eti nayanam pantha vidyate anyanaya. Only by knowing the Supreme Lord one can one transcend death. There is no other way possible. Yeah. You are like last part. Even Lord Shiva. Even Lord Shiva confirms the unique position of Lord Vishnu. Mukti pradata sarvesham Vishnu eva na samasya. Only Lord Vishnu can add liberation to the living entity. There is no doubt about this. Yeah, so here is this topic. This was the topic about demigods cannot avoid the liberation, only Krishna can, right? यहाँ पे essentially क्या हमने डिस्कस करने का कोशिश किया इसमें मेनली कि कैसे जो देवी देवताज होते हैं वो लोग हमको कुछ टेम्पररी बेनिफिट्स दे सकते हैं, बट दे कैन नॉट गिव अस मुक्ति. They cannot give us the mukti. The mukti can be given only. Mukti means the ultimate liberation. That is, going back to the spiritual world. तो वो actually देवी देवताओं के हाथ में नहीं है. Like यहाँ पे कुछ examples भी बता रखे ना, like about Hiranyakashipu. So Hiranyakashipu desired from Brahmaji that Brahmaji, please kindly make me immortal. But Brahmaji told that I myself is not immortal. How can I give you immortality? So actually only Lord Vishnu, only Lord Krishna can give us that mukti. और द अल्टीमेट लिबरेशन. तो इसलिए दे रखा है कि कैसे सिर्फ कृष्णा ही जो है, कृष्णा या फिर लॉर्ड राम या फिर लॉर्ड विष्णु, सिर्फ वही हमको कैपेबल है मुक्ति देने के लिए. मुक्ति मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुक्ति मिलना? आपने सुना ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष. तो असली में मोक्ष का क्या मतलब है? असली में मोक्ष का मतलब यही है, टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट इज कॉल्ड एज द मोक्ष. तो ये जो मोक्ष है वो कौन दे सकते हैं? सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं. क्योंकि बाकी सारे देवी देवता क्या है, वो सब थोड़े दे आर लाइक ऑफिसर्स. They are like, there are some, appointed officers, but they are not the main person. Main person is Krishna only. तो इससे आप एग्जांपल भी बता रहे हैं कि जैसे इवन जो लॉर्ड विष्णु का वर्शिप करता है ना, उनके ऊपर यमराज जी का भी जुरिसडिक्शन में नहीं रहता है वो व्यक्ति. Like for a devotee, when a devotee leaves the body, so Yamdutas don't come in his life. For the other people, the Yamdutas come, those who are sinful and all.
ये बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ तक आपको पॉइंट। इस स्क्रिप्चर्स में अलग जगह पे लिखा भी है ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुर एव न संशय, only Lord Vishnu can award liberation to the humanities, there is no doubt about this, okay. And this is the last part. Demigod worship is like bribing the officers instead of following the laws of government, okay. या तो this somebody else can read, जिसने अब तक जो और कोई पढ़ना चाहेगा जिसने नहीं पढ़ा अभी तक? Sir, may I read? Okay, yes Pawan, you can read. Pawan is always very enthusiastic to read. Good. Yes Pawan. The demigods are, so to speak, different officers and directors in the government of Supreme Lord. One has to follow laws made by the government, not by the officers and directors. Similarly, everyone is to offer his worship to Supreme Lord only. That will automatically satisfy the different officers and directors of Lord. The officers and directors are engaged as representative of government, and to offer some bribe to them is illegal. Similarly, the demigods and representative of Supreme Lord or worship them separate from Lord is considered as avidhi purvakam, worship done in a wrong way. या तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं को वर्शिप करते हैं लोग, वो उसको क्या बताया गया, उसको बताया कि इट इज अविधि पूर्वकम, ये सही विधि नहीं है। तो इट इज जस्ट लाइक क्या है, जैसे कि आपको सपोज गवर्नमेंट का कुछ, सपोज आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो और आपको कुछ काम करवाना है, तो वहाँ पे आप कुछ घूस देते हो मान लो, वहाँ पे जो आपके ऑफिसर्स होते हैं। तो वैसे देवी देवताओं को भी लाइक यू नो, देवी देवताओं को भी लाइक आप उनकी जो वर्शिप करते हो उसको भी बोला गया, इट इज ऑल्सो लाइक ब्राइबिंग, यू नो, इट इज ऑल्सो लाइक अ ब्राइब. Ultimately, what a person is supposed to do? A person is supposed to follow the Supreme Lord, just like a person is follow the supreme laws. But if a person is not ready to follow the supreme law, then he has to take help of the officers and he has to give them bribe and all. But if somebody is worshipping the Supreme Lord, then one does not have to give that bribe. That is being spoken here, okay? And this is the last part. If demigod worship is condemned, then why do the scriptures prescribe it? Okay? तो और कौन पढ़ना चाहेगा? Anyone else? Me? Can I read, Yes, sir? Abhishek. Yes, sir. कौन उत्कर्ष बोल रहे हैं क्या? जी. ओके, आई थिंक अभिषेक, आप दोनों ने नहीं पढ़ा है ना इतना, उत्कर्ष ने, अभिषेक ने, ठीक है। तो उत्कर्ष आप पढ़ लो, पहले वाला पार्ट आप पढ़ लो, फिर अभिषेक पढ़ लेगा। ओके पढ़ो। ओके. Yes, उत्कर्ष पढ़ो। हाँ। Yeah. Okay. If demigod worship is condemned, why do scriptures prescribe it? A question may be raised at this point. If the demigods cannot award any worthwhile benediction, then why is their worship recommended in the scriptures? Accepting Vedic authority to fulfill sense gratification is the beginning of surrender to God. Worship involves performance of yajna, sacrifice, tapa, austerities, dana, charities, and that help one to become free from aham and mama. एक मिनट. I will explain. You just read it once. I will explain it. है ना? No need to be worried. 1 minute सर, वो सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी इसलिए. अच्छा, अभी आ रही है? हाँ बोल. हाँ आ रही है सर. हो गई थी, वैसी हो गई थी मेरी ओर से. And mama false proprietor, the worship or the mantras offered to demigods always carries the name of Vishnu in the beginning and the end. Thus, a demigod worshipper also recites the name of the Supreme Lord and slowly gets its benefits over a period of time. Example. तो ये मंत्र दे रखा है यहाँ पे ना, ठीक है, ओके फाइन. तो सी यहाँ पे बहुत सी जस्ट हम लोग को जस्ट 5-10 मिनट और लगेगा इसको फिनिश करने के लिए. दिस इज द लास्ट पार्ट ओनली, इसके बाद में और कुछ नहीं है. Okay, this is simple part only. Okay, just 10. It's 12:35 now. I will just take 10 more minutes. We'll finish it. Okay, but this is very important. Last part. तो इसमें देखो क्या बता रखा है. अगर डेमिगॉड वर्शिप इतना अच्छा नहीं है तो फिर क्यों हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र में उसके बारे में बता रखा है ना, सारे प्रोविजंस दे रखे हैं कि कैसे, अगर काली का पूजा करना है तो कैसे करना चाहिए, ब्रह्मा जी का पूजा करना है तो कैसे करना चाहिए. ये सब प्रोविजंस हमारे शास्त्र में दे हैं. तो ऐसा क्यों दे रखा है, देखो बता रखे हैं यहाँ पे रीजंस.
देखो आप देखोगे ना जनरली like all of you do you agree that like the things which we are talking is very high-fi, one should worship God with a very selfless desire to just love and to serve. It is like something very very high, isn't it? Like इससे पहले आप सोचो before coming to association of devotees, before coming to the philosophy, our philosophy, how many of us will have thought that we have to worship God out of just selfless love and desire to without any selfish interest? Not many of us, isn't it, right? Most of us will be desiring something that okay, going to the God means we have to desire something. God is like our order carrier. We will order to God and then God will supply it to us, right? But now we are discussing that how we have to approach God for nothing except for the pure love and pure service, isn't it, right? So you will find, see, in this world, not many will be able to directly come to this platform that let me just worship the God out of selfless love and service and desire to serve, isn't it? Do you agree with this? ऐसा नहीं होगा कि ज्यादातर लोग इस चीज के लिए आना चाहेंगे, राइट? अब देखो ना इस वर्ल्ड में भी जो लोग भी सो कॉल्ड रिलीजन फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे फॉलो रिलीजन फॉर गेटिंग सम मटेरियल बेनिफिट्स, राइट? Like people go to Tirupati Balaji and they have their list prepared, like most of the people in this world, they go to the God for getting their list fulfilled. So we go to the God to ask that God, this is my list and you have to supply this to me. But as we are discussing in our sessions that how that is not the highest motivation. The highest motivation is when we simply desire to love and serve the Lord. That will only satisfy us fully, and that is the right way we can worship the God. Okay. But most of the people in this world, because they desire some material enjoyments, they desire some material benefits, that's why they will try to go to the God. So that's why God is also very merciful. Understanding this mentality of the people, God has also made provisions that okay, fine. Even if you want to get some material benefit, okay, you come to me. So God has appointed, okay, now there's Lakshmi ji is there, Ganesh ji is there, and Parvati ji is there. So God has appointed them, okay, you at least provide them some material benefits. At least they will come to you, and in that way, at least they will start believing upon, they will no more remain atheist. Like nowadays modern times, ज्यादातर लोग आज के समय में आप देखोगे लोग एथिस्ट बनते जा रहे हैं, because they don't believe on anything, they don't believe upon any supremacy of anyone, and they just think that I can do anything in my life, I can achieve anything in my life. That is called as the atheism. Okay. So abhi kya hai? Better than being an atheist is better is if somebody can at least worship the Devi Devtas for getting the material benefits, because at least he understands, like जो देवी देवता का पूजा करता है उसको समझ में आता है कि एक्चुअली मैं सुप्रीम नहीं हूँ, कोई ना कोई और सुप्रीम है जिसके अंदर मैं डिपेंडेंट हूँ, राइट? अगर मुझे मटेरियल बेनिफिट्स भी चाहिए मेरे लाइफ में तो मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, सब कुछ मैं अपने हिसाब से नहीं पा पाऊंगा। तो इसलिए देवी देवता का वर्शिप भी भगवान ने बनाया है, ताकि क्या है, पहली बात तो क्या है, सारे लोगों का प्योर मोटिवेशन नहीं होगा कि वो प्योर भक्ति के लिए जाना चाहेंगे भगवान के पास में। ज्यादातर लोग तो मटेरियल चीजों के लिए जाना चाहेंगे भगवान के पास में। तो भगवान ने उनको भी एक मौका दिया है ताकि वो लोग भी भगवान के पास में आ सकें, एटलीस्ट वो किसी अथॉरिटी को मानना स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एथिस्ट। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे ये बता रखा है, सी accepting the Vedic authority to fulfill the sense gratification is the beginning of surrender to God. Ultimate thing is to surrender to the God, but somebody may not be directly coming to that platform. At least he start accepting that yes, I have to follow the Shastras. Even if I want to enjoy in this world, then I have to refer to the Shastras. I have to worship the Devi Devtas. तो इस तरीके से एटलीस्ट उसका बिगनिंग हो गया है स्पेशल पाथ की तरफ। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है। और दूसरा बता रखा है कि इवन जो देवी देवताओं का वर्शिप बनाया गया है उसमें भी क्या करना पड़ता है, उसमें भी सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। उसमें भी यज्ञ लगता है, मतलब व्यक्ति को अपना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लाइक पीपल हैव टू, लाइक जैसे लोग कुछ यज्ञ करवाते हैं तो उनको अपना हार्ड अर्न्ड मनी से घी गुड़ वो सब देना पड़ता है। लाइक आपने घर पे देखा होगा ना, लाइक हमारे पेरेंट्स भी देवी देवताओं का पूजा करते रहे हैं घर पे, राइट? तो आपने देखा होगा ना, देवी देवताओं का जब पूजा रखा जाता है, यज्ञ करवाए जाते हैं, राइट? तो घर वाले लोग भी बहुत सारी यज्ञ करने के लिए बहुत सारी सामग्री खरीदनी पड़ती है, घी दूध एक्सेट्रा। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, उनको खाना वाना खिलाया जाता है, राइट? तो जो हार्ड एंड मनी है व्यक्ति का, वो सेक्रीफाइस करता है इस तरीके से। तो ये भी एक प्रैक्टिस है जिससे कि व्यक्ति क्या है, सेल्फलेस बनना सीख रहा है, क्योंकि वो अपना हार्ड एंड मनी देता है भगवान की सेवा के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए। तो इवन देवी देवताओं की पूजा में भी ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। उसमें तपस्या की जरूरत होती है, दान की जरूरत होती है, एंड सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। तो इस सबसे करने से क्या होता है कि व्यक्ति का जो मटेरियल डिजायर्स के साथ जो अटैचमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। लाइक पीपल अपना हार्ड अर्न्ड वेल्थ को यूज करते हैं किस चीज के, यज्ञ करवाने के लिए या फिर भंडारा करवाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि उनका जो अटैचमेंट था मनी से वो थोड़ा भी कम होना स्टार्ट हो गया एटलीस्ट। तो यही लिखा है कि जो उनका बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है और प्रोप्राइटरशिप का जो सेंस है वो भी थोड़ा कम होने लग जाता है देवी देवताओं की पूजा करने से भी, ये बता रहे हैं। और तीसरी बात बताइए कि जो हमारे शास्त्रास ना बड़े इंटेलिजेंटली बनाए गए हैं। तो शास्त्रास में बता रखा है कि इवन अगर आपको देवी देवताओं की पूजा करनी है तो उसके अलग अलग मंत्र बताए रखे हैं।
और उन सब मंत्रास में भी भगवान विष्णु का नाम डाल ही जाता है। आपने अगर घर पे भी देखा होगा ना, जो अलग अलग पूजाएं करवाते हैं पेरेंट्स ना, सत्यनारायण पूजा एंड ऑल, आप देखोगे ना, उसमें भी आप देखोगे, अब देखना मंत्रास अगर थोड़ा ध्यान से आप सुनोगे ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं विष्णवे नमः, विष्णु नमः कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, शुरू में या एंड में पक्का आते ही आता है। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि कोई व्यक्ति अगर देवी देवताओं की पूजा करेगा, लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा, वो भगवान विष्णु का नाम सुनेगा, धीरे-धीरे वो प्यूरिफाइड हो जाएगा एंड वन डे ही विल कम टू कृष्णा आल्सो, दैट इज व्हाट। तो इसलिए हमारे शास्त्र में बता रखा है, प्रोविजन समझ में आएगा। तो एसेंस क्या है कि क्यों बता रखा है, पहली बात है कि सारे लोग प्योर लव के लिए नहीं एस्पायर करेंगे शुरू से ही। मेनी ऑफ देम दे विल वांट टू गो फॉर देयर मटेरियल बेनिफिट्स। तो अभी करंट टाइम्स में पीपल आर अप्रोचिंग द साइंटिस्ट एंड द टेक्नोलॉजिस्ट फॉर गेटिंग देयर मटेरियल बेनिफिट्स, राइट? बट द शास्त्र्स आर टेलिंग दैट बेटर गो टू द देवी देवतास, दे विल गिव यू द एंजॉयमेंट। तो इसी बहाने एटलीस्ट वो वैदिक अथॉरिटी को फॉलो करना स्टार्ट करेगा, ओके? और वो जो वर्शिप होता है उसमें भी क्या है, व्यक्ति को बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, उससे ऑटोमेटिकली वो उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है व्यक्ति का। और जो मंत्रास होते हैं उसमें भी भगवान विष्णु का नाम वाम लिया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बता रखा है, इवन जैसे गणेश जी का अगर वर्शिप करते हैं, इस मंत्र से किया जाता है। अब इसमें भी देखोगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यत मनवा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायण येति समर्पयामि। सी नारायण यहाँ पे वर्ड आ गया, राइट? गणेश जी का पूजा करने का ये मंत्र है, बट उसमें भी देखो नारायण वर्ड आ गया है। तो सी whatever I think speak and do with my mind, intelligence and sense, I offer them all at the lotus feet of the supreme lord Narayana। तो गणेश जी की रेसिटेशन जो उनका लिए गणेश जी के लिए स्तोत्र गाते हैं, उसमें भी आता है प्रेयर लाइक दैट। तो यहाँ पे बता रहे हैं अल्टीमेटली कि इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर देवी देवता की भी वर्शिप कर रहा है एज पर द वैदिक नॉलेज, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो भी अल्टीमेटली भगवान विष्णु के वर्शिप के पास में आ जाएगा लाइक दैट। लाइक ऑल ऑफ अस आल्सो यू विल फाइंड इन योर लाइफ, मेनी ऑफ अस मे आल्सो बी लाइक, हम में से भी बहुत से लोग पहले देवी देवताओं की पूजा कर रहे होंगे मोस्टली, राइट? सम ऑफ अस मे बी वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, सम ऑफ अस मे बी वर्शिपिंग दुर्गा जी और काली जी, और एंड नाउ बिकॉज वी वर डूइंग दैट and maybe because of some good motivations, now slowly they have also helped us to come here, अगर कोई देवी देवताओं के पास में भी जा रहा है ना, किसी मटेरियल डिजायर के बिना, जस्ट अगर जाता है कि वो देवी देवता, लाइक सपोज मान लो आपको शिव जी से बहुत प्रेम था, या फिर आपको गणपति जी से बहुत प्रेम था, मान लीजिए, आप जस्ट जाओगे कि ओ गणपति जी, है ना, प्लीज काइंडली गिव मी व्हाट यू कंसीडर द बेस्ट, जो भी आप बेस्ट मानते हैं आप मुझे वो दीजिए। अगर आप इस प्रेयर के साथ में भी कोई जाएगा देवी देवताओं के पास में ना, सी देवी देवता आर आल्सो डिवोटीज ऑफ कृष्णा, they are the agents of Krishna only. Krishna has appointed them to take care of the affairs of this universe. तो जो देवी देवता होंगे वो लोग भी क्या करेंगे, आपको कृष्णा के पास में लेकर आ जाएंगे, like that it happens, okay? That is how it works, okay? And the last thing is right and the wrong way in dealing with the demigods, right? तो हम लोग का क्या एटीट्यूड होना चाहिए देवी देवताओं के प्रति? ओके, हमको समझ में आ गया कि देवी देवता तो बस एजेंट्स हैं, they are like simply officers, right? So does it mean that we don't have to respect them? So see, this is a explanation for it, right? How we should treat, how we should see the Devi Devtas. So this is the last part. कौन पढ़ना चाहेगा जिसने नहीं पढ़ा है? अभिषेक, आपने हाथ रेज किया था, राइट? अभिषेक या फिर आयुष, आई थिंक दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। How we should see the Devi Devtas, okay? Sir, maybe I can read. हाँ, yeah, you can read, Ayush. A devotee of Krishna understands that demigod are all empowered servants of Krishna who are given a particular service to do. Therefore, he is not offensive towards them. He sees them as parts and parcels of Lord Krishna and offers them due respect. Thus, only a devotee of Krishna knows best how to actually honor a demigod. Read. The proper way to deal with the demigod can be understood from the following example. Suppose you met a police constable. He is a representative of the government. If you slap him, you are slapping the government. It is very offensive behavior. But going to the other extreme, if you go and fall at the feet of the constable and say, "Oh Lord, you are not only the constable, but you are also the sub-inspector, the IGP, Inspector General of Police, you are the all in all, you can give everything," then that is untrue flattery. A sincere constable will not be pleased by such false glorification. In fact, he will feel embarrassed. But if you offer the constable respect that is due to him as a proper representative of God, government, then he will be pleased because that is the proper way of dealing with him.
या तो समझ में आया आपको यहाँ तक पॉइंट? आई थिंक मे बी पूरा एक बार पढ़ लेते हैं इसको. या गो अहेड. और Similarly, अच्छा, और वेट आई थिंक आयुष, कैन यू एक्सप्लेन अब तक यहाँ पे क्या पढ़ा आपने इसमें? yes, sir. Yes, sir. हम्म. Sir, here it is told that a true devotee only can like he can actually honor a demigod because he have to give them respect, but the ultimate respect that should be given to the Supreme Lord, not the demigods. Similarly, example is given as like if we are meeting a police constable and we are going down to him and we are telling you are the supreme government and everything, you are sub inspector, you are IG and all, so he will feel very embarrassed and he will feel very bad if he is true, if he is like he have some ignorance and all, then he will be like overwhelmed and he may give some facilities to us, but if like he will be honest, then he will be embarrassed by our such things and he will not feel good actually. या तो सेम वे जो देवी देवता भी होते हैं, अगर हम उनको उन्हीं को सब कुछ मान के उनकी पूजा पाठ करते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दे आर लाइक ऑर्डिनरी पीपल ना, दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट अरे हम लोग नहीं है सुप्रीम बाबा. So that right, and at the same time we don't have to disrespect कि अरे देवी देवता, Krishna is the supreme, I am trying to worship Krishna, I'm chanting Hare Krishna, who are these Devi Devtas? Oh, forget about them. That is also not good, because right, a police constable also, if you mistreat a police constable, then what will happen? You will get punishment. Why? Because he's also representing the government, isn't it? Same way, Devi Devtas are also the representatives of the supreme government. So basically we have to treat them respectfully, not mistreat them, not disrespect them. That is what it says, you know? Okay, read ahead. Similarly, the demigod, being the empowered servants of Krishna, are his representatives. So if we disrespect, offend, or blaspheme them, then we are disrespecting Krishna. But if we glorify them to be the supreme, as some demigods worshippers do, then we are actually embarrassing and displeasing them. Therefore, the proper way for devotees to deal with demigods is to respect them as the representative of the Supreme. Therefore, when he happens to go by a temple of Lord Ganesha, he prays, "O Lord Ganesha, please remove all the obstacles on my way back to Krishna." When he sees a Shivalinga, he prays, "You are the topmost Vaishnava. Please make me also a devotee of Krishna so that I may get an opportunity to eternally serve him." When he passes by a temple of Goddess Saraswati, he prays, "O Goddess Saraswati, please bless me so that I may understand the Srimad Bhagavatam and become a pure devotee of Krishna." A devotee can never even dream of going to the demigods for material benefits. The gopis of Vrindavan, who are the topmost devotees of Lord Krishna, prayed to Goddess Katyayani Durga not for any material benedictions, but to get Krishna as their husband. Thus, the conclusion is that one should aspire to become an unalloyed devotee of Krishna and worship him wholeheartedly. Yeah, so this is the main thing right now. So we treat demigods respectfully, this is the one thing. And second thing is, even like and even if we go to the demigods, then we always ask for helping us in our execution of our bhakti to Krishna. That is how we deal with the demigods. Okay, so that is what is being mentioned here. Okay, so thank you so much for your patient hearing. And finally, we have covered up this workshop. Actually, I thought of taking it peacefully only because all of you had good interest and there was no hurry also. You have also a lot of time. So anyways, but we could cover it very, very nicely, I will say. I have covered it for our other students of other colleges, IIT Kanpur and BHU also. But for all of you, we could cover in a very wonderful way, in a very peaceful way. Thanks to all of you for your good interest and for your thanks to the college for the holidays also. Okay, so thank you so much. Any of you have any questions? Then you can now ask. I am available.
Otherwise, we will meet next time. Also, I want to thank all of you. Yes, Some of you have already given device presentations. So your seniors were telling me that it was very good. And I'm yet to see it. I think it is uploaded on YouTube. Today, I have planned to take out some time to see it. You know? And happy to see that all of you have started now participating into learning this device nicely and giving it to others. That's very good, actually. If we can learn it very nicely, the whole world is in need of so many wonderful devotees like all of you who can themselves practice the spiritual life in their own life and can share this knowledge with the people of this world. So learn it very nicely. Our seniors are very hard. They're working very hard to help all of you grow into very wonderful spiritual leaders of the time to come. To take full advantage of that opportunity. Okay. And I think आपने बताया Friday को, right? आपका Friday को है ना PPT presentation. So I will try to be available in that. I also wish to see what are the wonderful jewels you have found in your study of the spiritual books. So I'm also excited to see it, you know. So we'll meet on the Friday then coming, you know. Thank you so much. Please continue. Those of you who are, you know, who wish to continue, and those of you who have questions, who all have questions. Utkarsh is raising the hand. Okay, yes, Utkarsh, you can ask. यस सर. सर हम लोगों का ना जो लास्ट सेशन हुआ था अभी, उसमें आपने एक वो पेस्टिसाइड वाला बताया था कि नहीं, उसमें जो आपने एक वीडियो दिखाया था, उसमें थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था उसमें. तो सर उसमें आपने दिखाया था कि पेस्टिसाइड्स का यूज करने के बाद जो 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 नवजात शिशु होते हैं उन्हें डिफरेंट अंग उनके टिल्टेड हो जाते हैं, थोड़ा होते हैं उनके टिल्टेड हो जाते हैं पेस्टिसाइड का यूज. और सर जो हमारे जनरल ह्यूमन बीइंग हैं उनका भी यही होता है कि उनके भी कभी कभी किसी को अगर देखें तो उनके भी हाथ पैर किसी के टेढ़े हैं, किसी का मुंह वैसा है, लेग ऐसे ऐसे होते हैं टाइप के. और पेस्टिसाइड का जो यूज करते हैं उनका भी. तो सर इसमें लॉ ऑफ कर्मा कहाँ है सर? इसमें नहीं कहते हैं कि अगर आपने पास्ट लाइफ में जो किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलता है? Yes, good question. I understood your question. तो देखो उस वीडियो में हमने क्या देखा था ना, in that video there was a research about what are the harmful effects of pesticides upon the people in general. तो जहाँ पे भी पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज किया गया ना, that video was, उसमें दिखा रहे थे वो लोग, आई थिंक केरला का दिखा रहे थे वो लोग. तो उसमें क्या है कि जैसे जिस विलेज में बहुत सारा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा था, यू नो, वहाँ पे क्या गवर्नमेंट खुद वहाँ पे लाइक बहुत सी जगहों पे है ना हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पेस्टिसाइड्स का स्प्रेड करती है, कई जगह पे ऐसा होता है. तो उसमें वो बता रहा है कि कैसे पेस्टिसाइड्स के यूज के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को वो हार्म कर रहा है, बहुत सारे एल्डरली लोगों को भी और बहुत सारे नई जनरेशन के वाले लोगों को भी हार्म कर रहा है. ओके, तो उस वीडियो में ये चीज बता रखी थी. ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन की लाइक कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा कैसे ऐड करता है ऐसी सिचुएशन में. देखो सी लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से क्या है कि हर एक व्यक्ति का जो प्रीवियस बैंक अकाउंट है पाप और पुण्य का, उसके हिसाब से उसको चीजें मिलनी है अपने लाइफ में. ओके, तो अभी जैसे मान लो सपोज एक विलेज है, सेम विलेज है लेटर से. अभी सेम विलेज में क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स के कारण कई सारे बच्चों को वो वैसा हो रहा है, यू नो, कई सारे बच्चों का यू नो लाइक यू नो ऑर्गन डिसेबिलिटी राइट, और ऑर्गन डिसेबिलिटी हो रहा है राइट. तो आप देखोगे बट सेम विलेज में सब लोगों को नहीं होगा क्योंकि उनका वैसा कर्मा नहीं है. ओके, दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को जिनको हो रहा है, अभी नेचर ने क्या किया ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको इस तरीके का पनिशमेंट मिलना था, उनको साथ में एक ही विलेज में लेकर आ गए. समझ में आया आपको? तो इससे जो लॉ ऑफ कर्मा होता है बड़ा सटल होता है. क्योंकि अनदर एग्जांपल है, यू नो अबाउट दिस टाइटैनिक ना, टाइटैनिक. वैसे टाइटैनिक में द फर्स्ट जर्नी में 2200 लोग थे. देयर वर 2200 बिग पीपल इन द टाइटैनिक, यू नो, मल्टी मिलियनेयर्स थे उसमें पहली जर्नी में, राइट. और उसमें से आई थिंक 1500 लोग डूब गए, 700-800 लोग बच पाए थे, 800 लोग आई थिंक, और बाकी 1500 लोग डूब गए उसमें. तो एक साथ में 1500 बड़े करोड़पति लोग डूब गए थे उस टाइटैनिक में, राइट. तो वैसे लॉज ऑफ नेचर कैसे काम करते हैं कि उन्होंने क्या है, जिन लोगों का वैसा कर्मा लिखा था डूब के मरने वाला, राइट, तो उन लोगों को नेचर ने साथ में लेकर आया टाइटैनिक में एक साथ में, और फिर एक साथ में वो डूब गए. देखो लेकिन सब नहीं डूबे. तो 800 लोग थे, 800 लोगों के कर्मा में नहीं लिखा था कि उनका डूबना, इसलिए लोग बच भी गए. और जिनका लिखा था वो बाकी लोगों का लिखा था वो लगे, राइट. तो इस तरीके से लॉज ऑफ जो नेचर होते हैं ना, वो सटली एक्ट करते रहते हैं. सर मैं आपको पॉइंट है. यस सर. और कुछ इससे आपको कंटिन्यू क्वेश्चन? नो सर. तो सर इसमें हाँ जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं हाँ, सर जो इसमें जी इसमें सर जो बच्चे हो रहे हैं तो उनका सर जो ऑर्गन डिसेबिलिटी है वो ड्यू टू लॉज ऑफ कर्मा है सर, या लॉ इसे सर लॉज ऑफ कर्मा कहेंगे या पेस्टिसाइड्स का एक्सेस यूज कहेंगे इसे?
देखो एक बात मुझे बताओ, देखो इंडिया में अगर स्टडी करोगे हर सेकंड कितने बच्चे पैदा होते होंगे? लाखों बच्चे पैदा होते हैं अगर पॉपुलेशन के जी हिसाब से जी। देखोगे, करेक्ट ना? हाँ हाँ हाँ। नाउ नाउ देखो, लॉ ऑफ कर्मा ने क्या किया, किसी को किसी के सपोज पुराने कर्म अच्छे नहीं है, कुछ बैड एक्टिविटीज उसने किया, उसको इस लाइफ टाइम में इस तरीके का पनिशमेंट मिलना है मान लो, तो क्या होगा? अब जिस विलेज में जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का बहुत एक्सेसिव यूज हो रहा है या फिर पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है लेटर से, तो अभी सी लैक्स ऑफ बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में हर सेकंड में, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो भी लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ बच्चे पैदा हो रहे हैं हर सेकंड में, ठीक है? नॉट करोड़, मे बी एटलीस्ट लैक्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स कह सकते हो, एटलीस्ट many thousands of the babies are being born every minute, let us say, correct, all over the world. Now अभी यस सर। उनमें से जिनका कर्मा बैड है, जिनको इस तरीके का सफरिंग लिखा हुआ है, उन लोगों को कहाँ पे बर्थ मिलेगा? इस तरीके के विलेजेस में जहाँ पे वैसा पेस्टिसाइड का ज्यादा हो पाया, राइट? अभी इतने सारे बेबीज में से इन्हीं को क्यों चूज किया गया? कुछ ना कुछ तो उसका लॉजिक रहेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक लाइक सी अभी आप लोग जब एग्जाम्स देते हैं जेडब्ल्यू का, कितने लोग बैठते हैं? आई थिंक 20 लाख, मे बी अराउंड 15-20 लाख बैठते हैं जेडब्ल्यू के एग्जाम्स में, लेकिन आईआईटीज एनआईटीज का सीट्स मिला के कितना होता है? टॉप 30,000, मे बी 30-35,000। तो आउट ऑफ सम 20 या lakh सर people, 20,000 मैक्सिमम। out of 20 lakh people, you see, out of 20 lakh people, only only some 20-30,000 people are able to get into the best colleges, isn't it right? तो वहां पे भी क्यों ये इन्हीं 20,000 लोगों को क्यों मौका मिला? अभी हमें दिखता है कि हार्ड वर्क कर रहा है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया था इसलिए उसको मिला, राइट? बट यू टेल मी वन थिंग, इज हार्ड वर्क सफिशिएंट? कई बार होता है किसी ने बहुत हार्ड वर्क किया हो, वो कोचिंग में एकदम टॉप आ रहा हो, बट उसका मेन एग्जाम्स खराब हो जाता है, या फिर मेन एग्जाम में उसका कुछ तो हेल्थ खराब हो गया था जिसके कारण वो एग्जाम ही नहीं दे पाया। ऐसी चीजें होती है ना। यस सर। इसलिए डेस्टिनी का फैक्टर बहुत बड़ा मैटर करता है। ओके, तो रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन में समझ में आपको, देखो कि क्या है, उन सारे बेबीज में यस से सर। जो हर सेकंड बॉर्न हो रहे हैं, उनमें से भी कुछ बेबीज हैं जो उस पर्टिकुलर विलेज में बॉर्न हो रहे हैं, जिनको उस तरीके का पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर मिल रहा है, और वो सब क्या है? बिकॉज ऑफ देयर कर्मा ओनली दैट इज बीइंग हैपनिंग। समझ में आया आपको? तो इस तरह से कर्मा के जो लॉज होते हैं यस बड़े सर। सटल होते हैं, वो एक्ट करते हैं लाइफ में इस तरीके से। ओके, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको नो सर, नो सर, नो। समझ में आया ना आपको? दैट इज हाउ इट वर्क्स। यस सर, यस और सर। देखो क्लास में भी होता है, क्लास में भी आप देखो सेम टीचर रहता है, सब स्टूडेंट्स भी लाइक सारे स्टूडेंट्स भी आए हैं, एक ही तरीके के बैकग्राउंड से सारे स्टूडेंट्स लोग पढ़ के आए हैं, सेम टीचर है, सेम क्लासेस ले रहा है, बट आप देखोगे हर एक स्टूडेंट अलग अलग लेवल पे ग्रास्प कर पाता है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग लेवल पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है, बिकॉज सबको अलग अलग इंटेलिजेंस मिला हुआ है, सबको अलग अलग एबिलिटीज मिला हुआ है। तो व्हाट इज द रीजन नाउ? अगर हम बोलते हैं कि चांस थ्योरी के कारण सब कुछ होता है या इवोल्यूशन के कारण होता है, तो बट इवोल्यूशन के कारण फिर ये सब डिफरेंसेस क्यों आते हैं? व्हाई नॉट एवरीवन इज अ कार्बन कॉपी? सबको सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, सेम लेवल ऑफ एबिलिटी, सेम फेस कट क्यों नहीं मिलता है? आप देखोगे इंडियन फिंगरप्रिंटिंग, हर एक व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होता है, हर एक व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो यूनिक होता है। So how that uniqueness is coming? If something is happening by chance, then many people would have the same DNA, same fingerprint, but no, because that is Krishna's fingerprinting. Krishna is in the control. That is how Krishna has made everyone unique actually. Okay, thank you. Yes, यस Pawan, सर। what's the यस question? सर, ओके, थैंक Yes, यू सर सर। सर आई हैव क्वेश्चन है सर। लॉ हाँ। ऑफ कर्मा क्या केवल बैड इफेक्ट्स में ही काम करता है? हमने कुछ अच्छा काम किया है तो क्या वे अगले जन्म में लॉ ऑफ कर्मा में नहीं काउंट होगा? होता है ना। आप लोग फॉर एग्जांपल लाइक ऑल ऑफ यू नाउ, why out यस of why यस out सर। of why out of 20 lakh people all of you were able to make it to a good college like MNIT? सर Because तो ओके सर। you have, सर मेरा क्वेश्चन मेनली ये है कि अभी आपने सर कुछ देर पहले सेशन में कहा था कि हम अगर सरस्वती जी की पूजा करके हमने गेन किया नॉलेज, तो वो केवल इसी जन्म के लिए रहा, अगले जन्म में हमें फिर जीरो से स्टार्ट करना होगा। ऐसे अगर correct. हमने किसी देवी गॉड से कुछ गेन किया तो इसी जन्म के लिए है, अगले जन्म में हमारा कोटा फिर से जीरो से चालू होगा। तब तो सर ये दोनों बातें कॉन्ट्रेरी हो गई ना। नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्राडिक्टिंग क्यों नहीं है? देखो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। हम क्या डिस्कस कर रहे थे वहां पे कि जो भी मटल चीजें हम इस वर्ल्ड में एक्यूमुलेट करने वाले हैं ना, मान लो आपने देवी देवता फॉर एग्जाम्पल आपने सरस्वती जी का पूजा किया कि मुझे अच्छी पढ़ाई मिल पाए, तो ठीक है, सरस्वती की कृपा आपको मिली, आप अच्छा पढ़ाई भी कर पाए, आप बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, पीएचडी भी कर लिए, उसके बाद आजकल पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कर लिया, ठीक है, आपने वो सब कर लिया। लेकिन क्या होगा कि जब आपका डेथ होगा ना, तो एक्चुअली आपकी पीएचडी वैसे सब खत्म चली जाएगी ना, आपके साथ ही उसका सबका एंड हो जाएगा। अगला जीवन जब आपको वापस मिलेगा पवन, तो आपको, आप बताओ, क्या आप पैदा होते ही पोस्ट डॉक की डिग्री लेकर पैदा हो गए क्या? बताओ। नहीं सर, पोस्ट डॉक्टरी डिग्री नहीं, बट क्या नॉलेज का इफेक्ट हमारे ऊपर ओके नहीं चलो रहेगा? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप अभी इस लाइफ में आपने ना बहुत बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट किया और करोड़ों रुपए आपने अर्न कर लिए, यू बिकेम लाइक अ बिल गेट्स एंड ऑल, यू हैड crores of rupees in your bank account. Okay, so next life when you get a new body,
नेक्स्ट लाइफ व्हेन यू विल बी बोर्न इन द नेक्स्ट बॉडी, तो क्या आप पैदा होते ही माँ के गर्भ से निकलते पैदा होते क्या आप करोड़पति निकलोगे? क्या नहीं निकलोगे, राइट? आपका जो वेल्थ था, मतलब पॉइंट था, जो आपने इस लाइफ में जो भी वेल्थ इकट्ठा किया था, क्या वो आपके साथ आने वाला है अगले लाइफ में? नहीं आने वाला है। तो देखो, तो जो भी मटेरियल चीजें हम इस वर्ल्ड में एक्यूमुलेट करते हैं इस लाइफ टाइम में, वो हमारे साथ आगे नहीं जाने वाला है। दैट इज वन थिंग व्हिच वी वांट टू से। ओके, तो ये था कहने का मतलब, राइट? दूसरा आपने क्या पूछा था एग्जैक्टली कि मटेरियल चीजें हमारे अगले लाइफ में नहीं आती है। सॉरी, हाँ, देवी देवताओं की वर्शिप करने पे हमको जो भी मटेरियल बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब हमारे लिए काम के लिए नहीं होते, अगले लाइफ के लिए। यही पूछ रहे थे ना? यस सर, एक्चुअली पॉइंट ये है कि सर हम जब रीइंकार्नेशन सर आप पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपने एक प्रूफ दिया था कि इस लाइफ में किसी के पास टैलेंट है। जैसे देखते हैं कि सर 3 साल में लता मंगेशकर गाना चालू कर दी, 14 साल में सचिन तेंदुलकर सर सिलेक्टेड हो गए। उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया अपने बॉडी पे कि वे इतने कम उम्र में इतने सक्सेस हो गए? बिकॉज दे हैव पुट सम एफर्ट ऑन देयर बॉडी इन प्रीवियस लाइफ, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग। सर उस समय आपने बताया था कि कोई सर मतलब कि बचपन में ही इतना, मतलब कि कोई बहुत ही ज्यादा विद्वान है जैसे चाणक्य है, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहा है बचपन में ही। सर हर हम जो भी गेन करते हैं वो हमारे वर्क की वजह से, कर्मा की वजह से गेन करते हैं, बट इतने ही कम उम्र में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं गेन किया, वो उनके सर पुराने कर्मा की वजह से, पूर्व जन्म में। बट अभी आप सर जैसे कह रहे हैं कि हम इस यहाँ पे जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में नहीं जाएगा, तो सर यही दोनों बातें सर कंट्री हो गई। सर हम ये नहीं कह रहे कि पैसा हमारा गया, सर पैसा गया, लेकिन बट हमने जो अपनी मेंटेलिटी थी पैसा कमाने की, वो हमारे पास वो मेंटेलिटी अगले जन्म में भी नहीं रहेगी कि सर जिसके कारण हम दूसरों से आगे निकल जाते हैं। कोई उस फील्ड में अच्छा सोच पाता है कि हाउ टू गेन मनी, और आर्टिस्ट के पास अच्छा सर इसका आइडिया होता है हाउ टू सर ड्रॉ पिक्चर्स, ही हैज डिफरेंट, दैट्स व्हाई एवरीवन इज डिफरेंट ना सर। सर जिसको हम कहते हैं एक मिनट, एक मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में मुझे आया एग्जैक्टली कैरेक्ट। थोड़ा सा एक बार आप जस्ट मे बी किसी और का कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको एक बार लेते हैं। आप थोड़ा एक बार और रिफाइन करके थोड़ा अपना क्वेश्चन सोचो, तब तक प्रिसाइजली क्वेश्चन आप निकाल पाओगे ना, तो उसका प्रिसाइजली हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ओके, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। किसी और का कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं पहले। इन द मीन टाइम आप थोड़ा अपने क्वेश्चन को और रिफाइन करो अपने माइंड में, आप एग्जैक्टली पूछना क्या पूछना चाहते हो। मुझे थोड़ा समझ में आया आपका क्या डाउट है, थोड़ा सा और रिफाइंड लेकिन आपकी चाहिए लैंग्वेज मुझको, है ना? और कोई किसी का कुछ और क्वेश्चन? आयुष, दिव्यांशु, कार्तिकेय, ऋतिक? Can you explain something about पितृ? मतलब ये फोर फादर्स वाला क्या कॉन्सेप्ट है? लाइक सोल तो होता है, वो नेक्स्ट बॉडी में चला जाता है, फिर ये वो पितृ वाला प्लेनेट है वहां पे, फिर मतलब किस लिए है वो? हाँ, देखो क्या है, सिंपल है। जैसे एक पितृ प्लेनेट क्या होता है, जो लोग भी अपने 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 पितरों की पूजा करते हैं उनके लिए प्लेनेट बनाया गया है, पितृ लोग जिसको बोलते हैं ना, पितृ लोग। तो जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, लाइक जैसे हमारे घर पे भी वैदिक ट्रेडिशन है ना, लाइक ना पितरों की पूजा करना, लाइक शादी सेरेमनी रखते हैं ना लोग, शादी सेरेमनी में क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली आप वैदिक यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को आप खिलाते हैं कुछ, तो उससे क्या होता है, जो पुण्य मिलता है, तो जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पुराने लाइक फॉरफादर्स रहे हैं, लाइक ना आपके दादा परदादा, जो लोग अभी इस वर्ल्ड में नहीं है, तो अभी क्या वो सबके पास में भी कुछ पाप और पुण्य का कोटा है ना, तो जब आप ऐसे शादी सेरेमनी करते हो तो क्या होता है, उससे पुण्य का कोटा उनका बढ़ जाता है और फिर उनको भी अच्छा डेस्टिनेशन मिलता है। ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब रही बात पितृ लोग किसको बोलते हैं, अगर आप अपने पितरों की पूजा करते हो, मतलब पितरों की पूजा करने के विधान होते हैं ना, जैसे शादी सेरेमनी, ये भी पितरों की पूजा करने का प्रोसेस हो गया। तो अगर पितरों की पूजा करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए, जो लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भी एक प्लेनेट बनाया गया, उसे बोलते हैं पितृलोक। समझे आपको? मतलब ऐसा नहीं है कि सारे फॉरफादर्स उस प्लेनेट पे रहते हैं। फॉरफादर्स तो क्या है, वो लोग भी अलग अलग स्पीशीज में होंगे। सम ऑफ देम विल बी इनटू सम अदर बॉडी एज पर देयर कर्मा। ओके, राइट? लेकिन हाँ, अगर आप उसकी वर्शिप करते हो पितरों की, तो आपको उस प्लेनेट में जाने का मौका मिलेगा जहाँ पे पितृ लोग के वर्शिपर्स जाते हैं। मतलब डिफरेंस ये है कि पितृ वहां पे नहीं रहते हैं उस प्लेनेट में। हम जब पितरों की पूजा करते हैं तो पितरों को क्या मिलता है, पुत्रों को भी कुछ बेनिफिट मिलता है वैसे। और दूसरी बात है कि हमको उनके प्लेनेट, जैसे आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो देवी देवताओं के प्लेनेट में जा रहे हो, वैसे अगर आप पितरों की पूजा कर रहे हो तो आप ऐसे प्लेनेट में जा रहे हो जहाँ पे उनके वर्शिपर जाते हैं। मतलब पितर वहां पे नहीं रहते हैं, बट जो वर्शिपर हैं पितरों के, वो वहां पे जाते हैं। समझ में आपको पॉइंट? यस सर, मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ ठीक से। नहीं, अरे सिंपल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मतलब सी जैसे वेदास में बता रखा है कि ठीक है, अगर आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आपके लिए असाइंड क्या है, हेवंस। ओके, और लेट मी गिव एग्जांपल। लेट अस से लाइक सपोज आप कौन सी ब्रांच में हो, ईसी में ना? ईसी, यस सर।
ओके आप इसी ब्रांच में हो तो आपके लिए हॉल नंबर ये है, सपोज XYZ है, आपके लिए हॉल नंबर XYZ है। ओके, कोई CS ब्रांच में तो उसके लिए हॉल नंबर ये है। ओके, कोई अगर केमिकल ब्रांच में तो उसके लिए हॉल नंबर ये है। तो वैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस डिफाइन की गई हैं। वैसे जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, जैसे जो लोग जो लोग भूत पिशाचों की पूजा करते हैं, है ना, भूतानी यान्ति भूतेज्य, तो वो लोग भूतों की स्पीशीज में जाते हैं। ओके, वैसे जो लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग देवताओं के प्लेनेट में जाते हैं। वैसे अगर आप पितरों की पूजा करते हो तो पितरों की पूजा करने वाले लोगों के लिए भी एक हॉल डिफाइंड है, उसको क्या बोलते हैं, पितृलोक बोलते हैं। तो वहां पे जाते हैं हम लोग। और पितृ कौन होते हैं? वही जो हमारे पूर्वज रहे हैं ना, हमारे, हम जिस फैमिली में जन्म लिए हैं उसी में हमारे जो दादा परदादा ऐसे करके जो उसको लीनिएज है ना, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पितृलोक। तो हम लोग लाइक इस जनरेशन में जो भी आप अच्छे काम करोगे ना, पुण्य काम करोगे, कुछ अगर वर्शिप रखोगे, तो हमारे जो फॉर फादर्स होते हैं उन लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, उन लोगों को भी मौका मिलता है अपने पुण्य बढ़ाने का और अलग डेस्टिनेशन में जाने का। इसलिए पितृ पूजा का कॉन्सेप्ट है हमारे शास्त्रार्थ में। ओके, डज इट मेक सेंस टू यू नाउ? यस सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सो या पवन, हाँ, और कुछ पूछना है सर, आपको? यस सर, हाँ can I प्लीज can पवन। हाँ sir, my हाँ हाँ question was पवन, या in this life, whatever activities we perform, you have told this will be carried with us only in this life, not in next life. Then what is the meaning of God gifted talent? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ God gifted talent. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड गिफ्टेड टैलेंट? ओके, तो कैन यू एलाबोरेट इट मोर? मतलब क्या है, किसी कोई छोटा सा था, उसको बचपन से बहुत सिंगिंग बहुत अच्छा सा सुंदर सा आता है, सिंगिंग आता है, Yes sir. या बहुत अच्छा Sir, पेंटिंग आता है, या yes बहुत sir. क्रिएटिव है, या बहुत क्रिएटिव है, Yes. लाइक दैट। यस सर, वो बचपन से ही ऐसा कैसे होगा? उन्होंने अपने सर बचपन में तो ऐसा कुछ बहुत कुछ तो कर नहीं लिया अपने ऊपर सर। किसी की देखते हैं मेमोरी बहुत शार्प होती है, किसी के हाँ पास हाँ कुछ अलग पावर्स है, तो बचपन से ही कैसे आ जाती हैं? हाँ हाँ, तो एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। देखो हम क्या बताना चाह रहे थे, पहली बात है उसको पहले क्लियरली समझते हैं। पहली बात क्या है कि जो भी हम मटेरियल अचीवमेंट्स लेंगे इस वर्ल्ड में, whatever material accomplishments we will try to gain in this world, they are not going to come with us in the next life. That is what we want to say it, which means what? Material accomplishment means what? Like you try to get lot of wealth. Suppose you have acquired lot of wealth in this life, but in the next life that is not going to come with you. Or suppose if you have gained lot of knowledge in terms of you have got PhD, MTech, BTech, whatever, the next life again when you will take your birth, then you are not going to get your degrees with you. So this is what we say that जो मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स हम लोग पाते हैं इस वर्ल्ड में, अगर देवी देवताओं के पास भी जनरली क्यों जाते हैं हम लोग? अपने मटेरियल डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए। ओके, तो अगर हमको मटेरियल डिजायर्स मिल भी जाती है, फुलफिल भी जाती है हमारी इस वर्ल्ड में, लेकिन हम नेक्स्ट लाइफ में उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। समझ में आया आपको ये पॉइंट? लाइक आपने बीटेक का डिग्री कर लिया, अभी आप अगले जन्म में अपनी बीटेक की डिग्री को नहीं लेके जा सकते हो। ओके, और आपने अगर करोड़ों रुपए कमा लिए, तो आप अगले जन्म में इस करोड़ रुपए को नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब अगले जन्म में हो सकता है कि आप पैदा ही आप टाटा बिरला के घर पे पैदा हो, मान लो बचपन से पैदा होते ही आप करोड़पति थे, क्योंकि आप, तो अब वो क्या केस होता है ना, देखो, तो उसका कारण ये नहीं था कि आपने पिछले जन्म में बहुत पैसा कमाया था इसलिए अभी आपके अगले जन्म में आपको करोड़पति फैमिली में जन्म लेने का मौका मिला है। ऐसा नहीं होता है। आपके पास अगर पुण्य का स्टॉक है, आपने कुछ पुण्य कर्म कर रखे हैं ना पहले, तो आपको मौका मिलेगा ऐसे बड़े फैमिली में जन्म लेने का जहाँ पे बचपन से ही आप करोड़पति बन जाओगे। तो एनीवेज कमिंग बैक, पहला चीज आपको समझ में आया कि जो हमारे मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो भी हमने इस वर्ल्ड में गेन किए, वो सब हमारे साथ अगले लाइफ में नहीं जाने वाले हैं। दिस थिंग इज क्लियर टू यू? नो सर, एक्चुअली सर मैं ये नहीं कह रहा कि वो थिंग्स जाएंगी, बट जैसे सर आपने कहा कि हमने वो जो सर मनी गेन की, मनी हमारे साथ नहीं रहेगी, बट क्या सर हमारे जो मनी गेन करने की स्ट्रेटजी, हमारा जो माइंडसेट है, क्या वो नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं रहेगा? उस पे आता हूँ। रुको, पहले इस फर्स्ट वाले आपका पहला जो क्वेश्चन उसको क्लियर करना था, राइट? पहला आपको समझ में आया कि जो ग्रॉस चीजें हैं, ग्रॉस मतलब बोलेंगे कि जो भी लाइक जैसे वेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, आपकी डिग्रीज हो गई, ये सब इस लाइफ के साथ अगले लाइफ में नहीं जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। नाउ दूसरी बात पे आते हैं, राइट? अब दूसरी बात में आप जो पूछना चाह रहे हो मुझे समझ में आया कि कई लोगों को बचपन से हम देखते हैं कि कई लोग जैसे लाइक दे आर वेरी, फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप बात करो हमारे बिल गेट्स की, ही वाज वेरी शार्प, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू डिवाइस द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, विंडोज एंड ऑल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट? तो अभी सब लोग कोई बिल गेट के जैसा दिमाग नहीं पाया था, और लाइक सब कोई बहुत एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा दिमाग नहीं पाता है। या कई लोग जैसे अपना धीरू भाई अंबानी का लाइफ स्टडी करोगे, उसको है ना, उसको वो बहुत बिजनेस माइंडेड था, तो उसने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, IIM का डिग्री नहीं था उसके पास में,
लेकिन उसका दिमाग बड़ा शार्प था, बिजनेस स्टार्ट किया और वो क्लिक हो गया और वो बहुत बड़ा धनी बिजनेसमैन बन गया, राइट? तो आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों को कई लोगों के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है, टैलेंट्स होते हैं, वो क्यों होता है, यही पूछना चाहते हो, राइट? यस सर। हाँ, तो देखो अगेन कमिंग बैक ना, ये जो स्पेशल एबिलिटीज होती हैं या स्पेशल टैलेंट्स होते हैं ना, उन सबका भी क्या रिलेशनशिप है, ये सब भी पुण्य कर्मों के कारण होता है। पुण्य कर्म मतलब कि आपके पास अगर पुण्यों का स्टॉक अच्छा है तो आपका इस जन्म में क्या होगा, आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलेंगे आपके लाइफ में। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको ऑलरेडी, सपोज कोई व्यक्ति करोड़पति फैमिली में जन्म लिया है। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है, इतने सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में, हमारी 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट ऐसे कम ही लोग क्यों हैं जिनको मौका मिलता है टाटा बिरला के फैमिली में जन्म लेने का? क्यों? क्योंकि उनका पुराने जन्मों का कोटा अच्छा है, पुण्य कर्म का कोटा ज्यादा अच्छा है, इसलिए उनको इसमें जन्म। आप मानते हो ना, देखो सपोज मैंने अगर टाटा बिरला में जन्म लिया है, क्या इसमें मेरा कोई कंट्रोल है इस लाइफ, कोई विजिबली कुछ कंट्रोल लगता है कि हाँ, लाइक कैन समबडी चूज दैट आई विल गेट इनटू द फैमिली ऑफ टाटा बिरला अंबानी? देयर इज नो विजिबल कंट्रोल, राइट ना? तो वो कंट्रोल क्या होता है, कर्मा के हिसाब से होता है। अगर आपने पायस पुण्य कर्म अच्छे कर रखे हैं तो आपको ऐसा जन्म मिलेगा जहाँ पे आपको बचपन से ही ये सब फैसिलिटी। सिमिलरली अदर रिगार्डिंग अबाउट दिस अदर एबिलिटीज ना, जो बाकी एबिलिटीज भी है, फॉर एग्जांपल लाइक आप बोलो जैसे सपोज बिजनेस का बात बोल रहे हो कि बिजनेस माइंडेड, बहुत बहुत शार्प बिजनेस माइंडेड, राइट? तो बेसिकली उसकी इंटेलिजेंस बड़ी शार्प मिली है उसको। तो ये थी जैसे अच्छी बॉडी मिलना, अच्छा फेस कट मिलना, अच्छी इंटेलिजेंस मिलना, अच्छा ब्रेन मिलना, ये सब क्या रहता है, हमारे पुराने कर्मा के हिसाब से डिपेंड होता है। तो अगर किसी के पास से बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किया है तो उसके हिसाब से उसको जन्म में ये सारी चीजें मिलेंगी बचपन से, ऐसा रहेगा। तो देखो मतलब पॉइंट क्या है कि जो पुण्य कर्म आपने किए ना वो आपके साथ चलने वाला है, पुण्य और पाप का तो कोटा आपके साथ में रहने वाला है। हम लोग क्या बताना चाह रहे थे कि देखो अगर देवी देवताओं की वर्शिप हम करते हैं ना, तो जो भी हमको मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे वो सब टेम्पररी हैं, क्योंकि वो सब हमारे साथ अगले लाइफ में कैरी हम नहीं कर सकते, ओके? लेकिन हाँ, जो इस वर्ल्ड में हम लोग पाप और पुण्य साथ में इकट्ठा करते हैं वो हमारे साथ अगले लाइफ में भी जाते हैं। तो आपने जो भी पाप और पुण्य किया उसके हिसाब से आपको अगला जीवन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एल्बर्ट आइंस्टीन है, अब उसको इतना अच्छा इंटेलिजेंस मिला, इसका मतलब क्या है, उसके पुराने पुण्यों का कोटा अच्छा है। वैसे आप देखोगे लाइक और भी आप जो भी एग्जाम्पल देना चाहते हो, कोई बहुत अच्छा सिंगर, सपोज कोई बहुत अच्छा सिंग कर पा रहा है अगले जीवन में, क्यों? क्योंकि उसके पास में अच्छा कोटा है, पुण्य का अच्छा कोटा है, इसलिए भी वो बहुत अच्छा सिंग कर पा रहा है और इसके कारण वो बहुत फेमस हो पाता है। अब देखोगे इस वर्ल्ड में कई लोग बहुत ऐसे फेमस हो जाते हैं बहुत जल्दी, वो ज्यादा स्पेशलिटी नहीं होता है उनमें, लेकिन वो ऐसे फेमस होते हैं क्योंकि उनके पुराने जन्मों का कोटा है। जैसे आप देखोगे फिल्म स्टार्स जो होते हैं, बॉलीवुड हीरोज एंड द हीरोइंस, हॉलीवुड हीरोज एंड द हीरोइंस, और पॉलिटिशियंस एंड ऑल, अभी ये सब लोग क्या, दे बिकम वेरी फेमस। Why they are able to become famous? That is also because of the past karma. पुराने जन्मों का कोटा है, इसलिए वो लोग फेमस बन पाते हैं बहुत जल्दी। समझे आपको ये पॉइंट? यस सर। Does it make sense to you now? नो सर, एक्चुअली थोड़ा सा ये भी डाउट था कि हम सर जैसे पुण्य कर्म किए तो कैसे डिसाइड होता है कि हमें कौन सा सर गॉड गिफ्टेड टैलेंट किस फील्ड में मिलता है? सर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हमने इस अगर जैसे हमारे कोई हमारे डिजायर के हिसाब से होता है। हमारे डिजायर, हमने डिसाइड किया ना, डिजायर एंड डिजर्व दो चीजें होती है ना। आपका क्या डिजायर रहा है और आप क्या डिजर्व करते हो, उसके हिसाब से रहता है, राइट? मान लो इस जन्म में ओके आपका सर। बहुत इच्छा था, राइट? लाइक वी नो ना, भरत महाराज वाज टू मच थिंकिंग अबाउट द डियर, तो अगले जन्म में फिर उनको डियर का बॉडी मिल गया। वैसे मान लो इस जन्म में आपका बहुत इच्छा था सिंगर बनने का, मान लो आपको बहुत अच्छी आवाज मिली नहीं है, बट आपका बहुत इच्छा था ना, अच्छा गाना गाने का, मतलब अच्छा सिंगर रहने का, काश मैं भी एक अच्छा सिंगर होता। और फिर मान लो आपने कुछ अच्छे पुण्य कर्म भी कर रखे हैं, अभी मरते समय भी आप वही सोचो कि मैं कितना अच्छा होता कि अगर मैं एक अच्छा सिंगर होता तो। या फिर मान लो आपको बहुत अच्छा सिंगर के बारे में सुनते रहते हो हमेशा, तो मरते समय भी आपके दिमाग में वो सिंगर ही छाया हुआ है। तो अगले जन्म में अगर आपका पाप पुण्य कर्म अच्छे हैं तो आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें कि आप भी अच्छा गा पाओगे। समझना है आपको ये पॉइंट? ओके सर। सर आई हैव बेसिकली कि जो पुण्य होता है ना, बेसिकली को पुण्य जो होता है, पुण्य और पाप हमारे साथ में जाते हैं अगले जन्म के लिए भी। और और ये सारी जो चीजें होती है ना, स्पेशल एबिलिटीज या फिर स्किल्स या फिर इंटेलिजेंस या फिर फेस कट या फिर पॉपुलैरिटी, ये सारी चीजें क्या होती है, पुण्य के कारण होती है। किसी के पास में भी ये सारी चीजें है ना, चार चीजें बताती है कुंती महारानी, बताती है भागवतम में, जन्म ऐश्वर्य श्रोता श्रीबीर, ये चार चीजें होती हैं। जन्म का मतलब होता है कि किसी अच्छे बड़े खानदान में पैदा हुआ है। ऐश्वर्य मतलब होता है कि कुछ उसके पास में ऑपुलेंस है। ऑपुलेंस है मतलब क्या है, या तो वो बहुत वेल्दी है, या फिर बहुत फेमस है, या फिर बहुत स्ट्रांग है, राइट? कई लोगों को बहुत स्ट्रांग बॉडी मिलता है बचपन से ही, लाइक खली इज देयर, बिग शो इज देयर, जो भी आप लोग देखते होंगे पहले। तो तो ये जो इसको बोलते हैं ऐश्वर्य, जैसे भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं ना, तो किसी को अगर बहुत ऐश्वर्य मिला है इस जन्म में, जन्म ऐश्वर्य श्रुता मतलब लर्निंग, कोई अगर बहुत दिमाग वाला है, बहुत स्ट्रांग उसका दिमाग चलता है। एंड श्री भी मतलब कि वो बहुत सुंदर दिखने वाला है।
तो ये सारी चीजें किसके कारण होती है? पुण्य कर्मों के कारण होती है, पुराने जन्म के पुण्य कर्म के कारण। समझ में आया आपको? यस सर। तो पुण्य और पाप हमारे साथ में जाते हैं, अगले जन्म में भी जाते हैं पुण्य और पाप के हिसाब से। ओके बट से देखो, पुण्य और पाप के लिए भी क्या है, वो सब भी आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में ही हेल्प कर सकता है। आपका अच्छा पुण्य कर्म कर रखा है, ठीक है, आप इस वर्ल्ड में वेल्दी बन सकते हो, इस वर्ल्ड में आप ब्यूटीफुल दिख सकते हो, इस वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो। बट इज दैट द रियल थिंग ऑफ द लाइफ? That is not the real thing of life, because even with that thing also you are going to remain in this world only, and being in this world means what? Corona will keep coming in your life, diseases will keep coming in your life, old age will come, and one day ultimately you have to die also. So this is a suffering, isn't it? So that's why it's not very intelligent to go for getting more and more पाप and पुण्य कर्मा। ज्यादा पुण्य इकट्ठा करने या पुण्य उसमें पाप करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। समझे आपको पॉइंट? क्योंकि आप पाप और पुण्य यस करोगे सर। तो वो भी आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में ही बाउंड करके रखेगा। ओनली भक्ति जो है, दैट डिवोशनल सर्विस जो है, भक्ति, वो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर लेके जा सकती है। दैट कैन गिव द सुप्रीम बेनिफिट। ओके पवन? Okay, sir, can I ask another question? Just a second, Karthik here, you can feel free, है ना? You can stop the recording now. There's no need to record anymore.